The videos on all of you. Now, we started with admission of a partner in the last lecture, right? What is admission of a partner? New partner is admitted, a new partner enters the business. बराबर है, existing partnership form है. Why do we bring a new partner in the business? Because mainly we need extra capital and extra skills. बराबर है. Extra capital and extra skills is what is the ultimate need. बाकी avoiding competition, economies of scale और आपका business expansion, सब added advantages है. तो पार्टनर आ तो गया बिजनेस में, हमें करना क्या है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो बुक एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, चेंज करनी है, वो हम लोग करेंगे. ओके, एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या चेंजेस होंगे, दैट वी आर गोइंग टू शो. नाउ out of those changes we saw the first 3 points in the last lecture. PSR, how many ratios you have in at the time of admission? You got 3 ratios. 3. What are the 3 ratios? There is an old ratio, there is a sacrifice ratio, and there is a new ratio. What is old ratio? The ratio in which Profit sharing ratio of old partner. Old partners जो ratio में share करते हैं, that is old ratio. What is sacrifice ratio? The ratio in which they forgo the share. जो नया पार्टनर का हिस्सा है उसको ये ओल्ड पार्टनर कितना कितना दे रहे हैं, उस हिस्से का कितना पार्ट फर्स्ट पार्टनर दे रहा है, कितना पार्ट सेकंड पार्टनर. दैट इज व्हाट इज सैक्रिफाइस. बराबर है. So that is sacrifice ratio, the ratio in which they give up their share for the benefit of new partner. There is something that is called as new ratio. What is new ratio? Profit sharing ratio between old and new partners. Sorry. Profit sharing ratio between all the 3 partners after the firm is established. Sorry. After the firm is formed, between all the 3 partners, whatever ratio they share, that is called as new profit sharing ratio of all the 3 partners. Is that clear? उसके बाद हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड लॉसेस. याद है आपको? पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉसेस किसको बिलोंग करता है? ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड लॉसेस बिलोंग्स टू होम? ओल्ड पार्टनर. उनकी मेहनत का पैसा उनको ही मिलना चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए. तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. प्रॉफिट है तो रिजर्व घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो रिजर्व्स टू कैपिटल. और लॉस है तो कैपिटल हैज गॉट कैपिटल विल डिक्रीज, तो डेबिट. इंटरनल लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट. एंड लॉसेस एसेट साइड पे दिखता है, आपको बताया था, एक्यूमुलेटेड लॉस, हेवी लॉस, दे हैव गॉट डेबिट बैलेंस, इसको हटाना है तो गिव इट अ क्रेडिट. सो लॉस साफ हो गया एंड कैपिटल कम हो गया. कैपिटल टू लॉसेस, कैपिटल टू लॉसेस, दैट इज द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉस. कैपिटल घटेगा इन केस ऑफ लॉसेस और कैपिटल बढ़ेगा इन केस ऑफ प्रॉफिट. तीसरा हमने देखा न्यू पार्टनर्स कैपिटल. नया पार्टनर आता है तो ऑब्वियसली कैपिटल लेके आएगा. एंड व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल? Cash to capital. Cash to new partners capital. He is also one of the part owners of the business. बराबर है. यहाँ तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. फिर रेशियोज कैलकुलेट किए थे. बराबर है. ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो. Now we are going to the next step in the process, that is goodwill. Okay, let's understand this concept of goodwill. What are the entries and what are the implications of goodwill at the time of admission? See, what is goodwill? आपने 11th में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है goodwill के बारे में. What is goodwill basically? It's like the reputation. Intangible asset. It is an intangible asset. It is a reputation of the business expressed in terms of money. Correct? It is the money value of reputation. Business के नाम का money value है. That is what is goodwill. Correct? ये तो हमने definition में learn किया हुआ है. Concept बहुत important है, ध्यान से सुनना. Goodwill नाम का पैसा है. अब आपको मैं बोलूं अचीजा होटल का गुडविल है 1 करोड़ रुपीस. गुरु कृपा होटल है सायन में, उसका गुडविल है 50 लाख रुपीस. पीवीआर सिनेमाज हैं, इसका बिजनेस है, चेन थिएटर्स, इसकी गुडविल है 10 करोड़ रुपीस. अब ये नाम का पैसा कैसे ढूंढूं? नाम को मैं पैसे में कन्वर्ट कैसे करूं? हाउ टू Goodwill to cash. सॉरी, Goodwill to cash. you are telling me the entry. I'm telling you how you will find out the money value of that goodwill. उसका अमाउंट कैसे मिलेगा?
हाउ शुड आई टेल कि भाई इस नाम की वैल्यू इतना रुपया है? The नाम का कैसे more वैल्यू मिलेगा? famous, the more the value it will have. Taking goodwill from his previous businesses. See, If it is very famous, so the amount of goodwill हाँ, would but be. how famous? Achija is famous in घाटकोपर, विद्या विहार, विक्रोली से मुलुंड तक है, या इधर माटुंगा तक है. By the previous accounts which they had made, we can identify the goodwill, that what could be the goodwill according to the profits they have earned. Profits. Ultimate answer for goodwill is profit. How to value a name? नाम का पैसा कैसे ढूंढना है किसी बिजनेस का? It is based on profit. So ultimate value of goodwill is nothing but the value of profits of that business. Goodwill की जो भी money value है, it is based on profits of that business. Simple. Okay, I'll give you a simple example. Practical example क्या होता है? देखो, practically goodwill कैसे calculate होती है? Suppose there are few businesses in the market. There is business A, there is B, there is business C, there is business D. Okay, कोई भी लाइन में ऐसा होता है, कोई 4-5 बिजनेसेस ले लो आप. ओके, और ये सभी बिजनेसेस अर्न कर रहे हैं ऑन एन एवरेज अराउंड 40,000 रुपीज के प्रॉफिट. ओके, ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग अराउंड 40,000 के एनुअल प्रॉफिट. सपोज ऑब्वियसली सेम नहीं अर्न करते होंगे, कोई 45, कोई 40, कोई 35, कोई 30, कोई 50. ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग अराउंड 40,000. एंड आपका बिजनेस है वो अर्न कर रहा है अराउंड 1 लाख रुपीज. बीइंग इन द सेम लोकेलिटी, वर्किंग विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, फिर भी आपका बिजनेस कमा रहा है अराउंड 1 लाख एनुअल, और बाकी सब बिजनेस ऑन एन एवरेज अर्न कर रहे हैं 40,000. ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये देखा होगा आपने भी. आप कपड़ा बाजार में जाओ, कोई क्लॉथ मार्केट में जाओ, तो क्लॉथ मार्केट में 50-100 ट्रेडर्स होंगे, सब क्लॉथ ही बेच रहे होंगे. आप फूड खाओ गली में जाओ, 50-100 दुकानें होंगी जो खाना बेच रही होंगी. लेकिन आपको कोई बोलेगा यार उस दुकान में से जाना, उस दुकान में से लेना, वहां पे बेस्ट मिलता है. या कोई पर्टिकुलर शॉप, एक नहीं तो 2-3 शॉप्स ऐसे होते ही होते हैं जहां पे आप जाओगे तो आपको रिकमेंडेशंस आते हैं सामने से, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पे टेस्टी मिलता है, यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलता है, यहाँ पे बेटर कपड़ा मिलता है, यहाँ पे जाओ, ऐसे रिकमेंडेशन. और आपने देखा होगा कि गर्दी भी वो पर्टिकुलर शॉप या 2-3 शॉप में ज्यादा होती है पब्लिक. ऐसा क्यों होता है? ऑल आर डूइंग द सेम बिजनेस, ऑल आर इन द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी. सब बिजनेस सेम काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, फिर भी एक बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट is the result of what? Is the result of its reputation built over years. उसका quality of goods, उसका customer satisfaction, उसका after sales service, उसका बातचीत का व्यवहार, उसका debtor creditor के साथ relations कैसे उसने maintain किया है. All these things built up over time and they are converted to higher profits. These are profits are called as goodwill. अब इनमें से कोई भी चीज tangible नहीं है. क्या आप customer satisfaction को देख सकते हो? नहीं देख सकते. क्या आप क्वालिटी को देख सकते हो? नहीं देख सकते. क्या आप आफ्टर सेल सर्विस को देख सकते हो? योर बिहेवियर कैन यू सी? यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट क्वांटिफाई दैट. बट अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स बिल्ट अप, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन तो सेम है, सेम लाइन में आप काम कर रहे हो, बट वही गुड्स में, कपड़े में ही काम करके आप क्यों एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हो? खाने की लाइन में सब खाना बनाते हैं, सब होटल्स में जाते हो आप. ओके, लेकिन व्हाई डू यू गो टू गुरु कृपा अगेन एंड अगेन इन सायन? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सायन. हैव यू हर्ड अबाउट दैट गुरु कृपा ऑफ सायन? अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो भी आपने उसके समोसे खाए होंगे. डेली इट मेक्स अराउंड 1,50,000 समोसा. अभी तो लॉकडाउन है, 1.5 लाख समोसा फ्रॉम डोंबिवली टू साउथ बॉम्बे, फ्रॉम वेस्टर्न लाइन में विरार टू योर चर्च गेट, एवरीवेयर, हर थिएटर में उसका समोसा जाता है.
दैट स्मॉल समोसा यू हैव ना, गुरु कृपा समोसा फेमस, क्यों? उसका एक टिपिकल टेस्ट है, पीपल गो देयर, कैन यू सी दैट? नो, दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अ बिजनेस कैन डेवलप. और ऐसा खाली ये लोकल बिजनेस नहीं, लोकल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कंपनीज, कंपनी के बिजनेस में भी सब आईटी सेक्टर की कंपनीज है, कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, दे आर द बेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर. बैंकिंग बिजनेस, सब लोग बैंकिंग बिजनेस करता है, स्टिल एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बेस्ट बैंक. व्हाई सो? बिकॉज दीज आर नॉट, सब लोग पैसे का ही धंधा कर रहे हैं. बैंक में जाके और क्या अलग करोगे आप? पैसा डालोगे, डिपॉजिट करोगे और निकालोगे, या लोन लोगे या लोन रिपे करोगे. फिर भी क्यों ये बैंक्स बेटर कर रही हैं? ऑल दीज इंटेंजिबल थिंग्स वर्क बिफोर, उनके पीछे काम करती हैं. उनकी सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, देयर बिहेवियर विद द कस्टमर, देयर आफ्टर सेल सर्विस, देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सब दिखती नहीं है. धीरे 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 डेवलप होती है मार्केट, और इसके बाद वर्ड ऑफ माउथ धीरे 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 स्प्रेड होता है. यही इसी रीजन से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो. और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे हो ना, एक्स्ट्रा मलाई आप कमा रहे हो ना 60,000 रुपीज की, ये कहा जाता है गुडविल. दिस इज व्हाट इज गुडविल ऑफ द बिजनेस. सो इन सिंपल टर्म्स, गुडविल इज व्हाट? इंटेंजिबल ऐसे तो बोल दिया, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस तो बोल दिया, उसको वैल्यू कैसे करोगे, क्वांटिफाई कैसे करोगे? Based on that extra profit earning capacity of the business. Extra क्यों बोल रहा हूं? Others are earning 40,000. This is called as normal profit. ये नाम होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मली सब लोग अर्न करते हैं. आपका एवरेज प्रॉफिट है, आप ऑन एन एवरेज अर्न करते हो 1 लाख रुपए. तो इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कहा जाता है इसको. ये जो गैप है, जो आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, आम प्रॉफिट, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट. ओके, आम लोग जो अर्न कर रहे हैं 40,000, आप जो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो दैट इज 1 लाख. व्हाई आर यू एबल टू अर्न दैट डिफरेंस ऑफ 60,000? दैट्स बिकॉज ऑफ योर all those intangible things which you have done in past. That is what is goodwill, that is what is profit. Extra profit is called as goodwill of the company. Is this clear? So this is one of the method, ultimately profits के ऊपर ही based है. इसको बोलते हैं super profit method. Super profit method, 90% of the businesses calculate goodwill by this method. और भी 2-4 methods हैं, वो CA फाउंडेशन में, यहाँ पे नहीं है, बट वो भी somewhat directly indirectly profits पर ही based है. तो आपको कोई पूछा जाए गुडविल को वैल्यू कैसे करनी है, प्रॉफिट्स जितना ज्यादा गुडविल उतनी ज्यादा. Is this clear? So those are earning the same 40,000, they won't have any goodwill. Sorry. Those are earning same 40,000. Everyone is earning, so they won't have any goodwill. Why? How they'll have goodwill? No goodwill, no intangible stuff. Any new competitor comes, he will also earn 40,000. Then why the people will go for that business? अगर मुझे इन कोई बिजनेस को खरीदना है, ABCD को खरीदना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दूंगा, जिसका वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी है वही उठाऊंगा. बट ये बिजनेस को खरीदना है तो इसका एसेट के साथ एक्स्ट्रा 60,000 भी देना रहेगा फॉर गुडविल. क्योंकि ये नाम के बिजनेस में मैं अब समझो गुरु कृपा रेस्टोरेंट है, कल उठ के मैं गुरु कृपा रेस्टोरेंट में मैं खरीद लिया और मैं बिजनेस चालू करने लगा, तो पब्लिक थोड़ी आनी बंद हो जाएगी, वो तो गुरु कृपा के नाम पे ही आती रहेगी. तो मुझे गुरु कृपा को एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट इज गुडविल, जस्ट फॉर दैट नेम. बाकी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी कोई तो एक्स्ट्रा कमा ही नहीं रहा है, तो मैं नया अपने नाम से चालू कर दूं, मैं भी वही अर्न करूंगा. व्हाई शुड आई पे एक्स्ट्रा फॉर दैट बिजनेस? या प्रथम सर, इफ यू बाय अ गुडविल, मतलब अगर अचीजा का ब्रांच खोल दिया, सो डू दे गिव अस द रेसिपी ऑफ ऑल द आइटम्स आल्सो? हाँ, अचीजा का वो ब्रांच खोलना है ना, वो गुडविल नहीं है, उसको बोलते हैं That is royalty, right? You pay royalty every year to अचीजा. या मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, अचीजा है, वैसा तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है. तो आप अचीजा का बिजनेस अक्वायर नहीं कर रहे हो, आप अचीजा का बिजनेस ही अक्वायर कर रहे हो. आप ओनर बन गए, पूरा खरीद लिया, तो आपको गुडविल देनी पड़ेगी अचीजा वाले, ऐसा. अदरवाइज अचीजा तो ओनर है ही, आप खाली उसके नाम पे कर रहे हो और उसको ब्रांच खोल के आप उसको हर साल पैसा देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जैसे आप रेंट पे करते हो. सो गुडविल का ये कंसेप्ट होता है सुपर प्रॉफिट. ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कंसेप्ट है, बहुत जगह पे यही यूज होता है कंपनीज वगैरह में. थियोरी में आप जो यूज कर रहे हो अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, उस कंसेप्ट पे जाते हैं. वो थोड़ा सा वेग कंसेप्ट है लेकिन इजी है, इसके लिए यूज होता है.
प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल नहीं है। अब वो कंसेप्ट क्या बोलता है, वो कंसेप्ट कि देयर आर ए बी सी डी 4 बिजनेस एंड 5वां है हमारा बिजनेस। ओके, ये 4 बिजनेस अज्यूम करते हैं कि ये 0 प्रॉफिट कमा रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस कर रहे हैं, और आपका बिजनेस जो है सेम लाइन में, सेम लोकेलिटी में, सेम कैपिटल है, सेम पैसा है, सेम साइज है, लेकिन आप कमा रहे हो 60,000। बाकी सब बिजनेसेस 0 प्रॉफिट 0। अब ये थोड़ा वेग अजम्पशन है ना, बाकी सब बिजनेसेस थोड़ी 0 कमाते रहेंगे। 0 कमाते हैं मतलब कुछ कमा ही नहीं रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। दे विल बी अर्निंग समथिंग, दैट इज व्हाट इज द लॉजिकल मेथड, ऊपर वाला सुपर प्रॉफिट। बट थियरी है, तो आपको 12th में यही करना है, ये मेथड है। वो सुपर प्रॉफिट है लेकिन वो खाली ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सैडली। थियोरी में आपको यही मेथड फॉलो करना है इन 12th स्टैंडर्ड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, मतलब क्या कि बाकी सब 0 कमा रहे हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस में है, आपका बिजनेस ही खाली प्रॉफिट कमा रहा है 60,000 का। तो वो क्यों कमा रहा है? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये जो आपके प्रॉफिट है वही आपकी गुडविल है, मतलब आप जो भी कमा रहे हो वो नाम के वजह से कमा रहे हो, दैट्स योर गुडविल। ठीक है, बाकी सब तो कमा ही नहीं रहे, बाकी सब तो शून्य कमा रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस कमा रहे या लॉस कर रहे हैं। तो आप जो भी कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, दैट्स ड्यू टू योर गुडविल, दैट्स ड्यू टू योर गुडविल। Practically, it is not your profits, it is the extra profit which you are earning, that is due to goodwill. Practically, it is the extra profit which you are earning, that is due to goodwill. 12th में हम लोग assume करते हैं कि भाई जो प्रॉफिट कमा रहे हो that is your goodwill, वो नाम की वजह से कमा रहे हो। Is this clear? Last warning now, keep the videos on. I'm teaching something important. Sir, one doubt. निकाल लेगा फिर बोलना मत मेरे को, पूरा लेक्चर नहीं लेने वाला है, दूसरा आईडी से आएगा फिर भी नहीं लेगा। एक वीडियो ऑफ नहीं दिखना चाहिए मेरे को। यस, व्हाट आर यू आस्किंग? Sir, if a new partner is coming, so he also pays the goodwill. ये तो करना है, इसी में तो काम है एडमिशन का, उसी पे जाते हैं अभी। देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये गुडविल कहाँ काम आती है। पहले कंसेप्ट समझे आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा मलाई विच यू आर अर्निंग, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मतलब वॉट एवर प्रॉफिट यू आर अर्निंग, दैट इज योर गुडविल। अदर्स आर जस्ट डब्बा, ओके, बाकी सब पानी कम। इज दिस क्लियर? दैट इज द assumption. Now let's understand how in admission of a partner this goodwill works and what is the use. Let us assume A and B are 2 partners. Okay, they are running a business, whatever business, cloth, confectionaries, whatever. They are making a profit of, let us say, 60,000 rupees per year. Since last 3-4 years, 5 years, they are making 60,000 rupees ka profit. Okay, and their profit sharing ratio is, let us say, 1:1, equal. ठीक है, तो ये 60,000 ये क्यों कमा रहे हैं? दैट इज ड्यू टू देयर गुडविल। अभी अभी बताया, क्योंकि बाकी सब पानी कम चाय। ये लोग का बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, क्वालिटी है, नाम है, इसके लिए दे आर अर्निंग 60,000। अब ये 60,000 ये कैसे शेयर करेंगे ए एंड बी? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 30,000। अब इन्होंने एक नया पार्टनर को लेटर से एडमिट करने का सोचा। They are wanting to admit C with 1/3 share in future profits. So can I say this is old ratio 1:1? C का share is 1/3, कल हमने किया था, तो कुछ sacrifice करना पड़ेगा। What is the sacrifice ratio? कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे what will you assume? 1:1। फिर आप क्या करते हो? न्यू रेशियो ढूंढना है तो आप क्या करते हो? सपोज एक्चुअल SR ढूंढते हो। What is actual SR? Share into SR। तो ए और बी विल सैक्रिफाइस, कितना करेंगे? 1/3 का हाफ, दैट इज 1/6, एंड 1/3 का हाफ, दैट इज 1/6। 1/6 इज एक्चुअल सैक्रिफाइस, याद आ रहा है ये? शेयर इनटू सैक्रिफाइस, एक्चुअल सैक्रिफाइस, एंड देन न्यू रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड में से सैक्रिफाइस कम कर दो तो न्यू रेशियो मिलता है। ये ए बी सी कितना आएगा? ए का हाफ माइनस 1/6, 6 इज द एलसीएम, 3 - 1 2/6। बी का भी हाफ माइनस 1/6, 6 इज द एलसीएम, 3 - 1 2/6। सी का आएगा 1/3 इंटू 2/2, रैशनलाइज्ड इट टू
2/6. So basically what's your new ratio? 2:2:2, which is 1:1:1. This is very rare. This is very rare, but can happen. It can happen. 1:1:1. आपने इक्वल पार्टनर्स बना दिया है तीनों को. आज के बाद तीनों इक्वली बिजनेस करेंगे, बराबर है. तो अभी तक का प्रॉफिट रेशियो क्या था? इक्वल था 1:1 बिटवीन ए एंड बी. तो ए एंड बी में डिवाइड होता था ये प्रॉफिट्स. आज के बाद ये प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है? 3 पार्टनर. ठीक है, 3 पार्टनर्स विल गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो अभी जब सी एडमिट होगा बिजनेस में, तब ए और बी क्या बोलेंगे? मिस्टर सी, आ जाइए, टेबल पे बैठिए, चाय पीजिए. चाय वाय पिलाएगा उसको और बोलेगा कि भाई सुन, तेरे को कैपिटल तो लाना है क्योंकि तुझे बिजनेस में पार्टनर बनना है. तो सी हैज टू गेट अ कैपिटल. सी बोलेगा ठीक है, कितना लेके आना है? ए और बी देखेगा हमारे हिसाब से बिजनेस में 2 लाख हमारे पड़े, तो तू 1 लाख लेके आ. तो ए और बी के 1-1 लाख पड़े हैं, तो सी से मंगवाएंगे 1 लाख. तो सी से कितना कैपिटल मंगवाएंगे? 1 लाख रुपए. ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रही है स्टोरी. कैपिटल मंगवाएंगे 1 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर सी. इज इट क्लियर? लिसन प्लीज. और सी से बोलेंगे कि भाई अब देख, तू हमारे बिजनेस में आ गया है. हमारे बिजनेस के प्रॉफिट है 60,000 जो हमारे नाम की वजह से हो रहे हैं. अभी 30-30 में डिवाइड हो रहे हैं. बट 1 साल बाद यही 60,000 कितने पार्टनर में डिवाइड होंगे आफ्टर 1 ईयर आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी? 3 पार्टनर में डिवाइड होंगे. जब 3 पार्टनर हो गए और पर पार्टनर शेयर कितना होने वाला है? 20-20-20 होगा. तो ए और बी बोलेंगे सी को, देख भाई सी, तुझे कैपिटल देना ही पड़ेगा 1 लाख रुपीज, बराबर है, बिजनेस में पार्टनर बनना है. अब क्योंकि ये जो 60,000 के प्रॉफिट होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ये हमारे नाम के वजह से होने वाले हैं. दिस इज ड्यू टू अवर नेम, बराबर है. तो इसमें तुझे जो 20,000 मिल रहा है वो तेरे हक का पैसा है ही नहीं, तेरे नाम का पैसा है ही नहीं. तू अगर अकेला बिजनेस चालू करता तो तू लॉसेस ही करता, क्योंकि बाकी सब बिजनेस लॉसेस कर रहे हैं. ये 20,000 जो तुझे मिल रहे हैं हमारे नाम के वजह से मिल रहे हैं, हमारी रेप्यूटेशन की वजह से मिल रहे हैं. तो आज ही के दिन इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 1 साल पहले, सी को बोलेंगे तुझे हमको 20,000 रुपीज देना पड़ेगा. तुझे हमको 20,000 रुपीज देना पड़ेगा. ये 20,000 कहां से आया? सी बोलेगा ये 20,000 कहां से आया? तो ए और बी क्या बोलेंगे? हमारे ये जो 60,000 के प्रॉफिट है, हमको लगता है 1 साल तक चलेंगे हमारे नाम के वजह से. एटलीस्ट 1 साल तक चलेंगे. कितने साल तक चलेंगे? फ्यूचर में 1 साल तक चलेंगे. तो गम्मत यहीं पे आती है. वैसे तो गुडविल का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. मैंने आपको बोला सुपर प्रॉफिट जो कमा रहे हो, प्रॉफिट जो कमा रहे हो वो गुडविल है. बट इतना सारा दिमाग खोड़ी क्यों आता है? बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स जब भी कोई बिजनेस किसी और को खरीदने जाता है तो गुडविल के कैलकुलेशन में 2-3 महीना लग जाता है. ये 2-3 महीना क्यों लग जाता है? ये रीजन से. क्या रीजन से? ए और बी बोल रहे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट जो 60,000 है 1 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा. ओके. तो वैसे कोई बिजनेस बोलेगा हमारा 2 साल तक चलेगा, वैसे कोई बिजनेस बोलेगा हमारा 3 साल तक चलेगा. ये कितना साल तक आप ये प्रॉफिट को सस्टेन कर पाते हो, ये एस्टिमेट निकालना इज अ बिग टास्क. ये एस्टिमेट निकालने में टाइम जाता है. सो सब इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये एस्टिमेट निकालने के पीछे पड़े होते हैं कि भाई अभी तक तो 60,000 कमाया है, क्या गारंटी कि नेक्स्ट 1 साल तक 60,000 कमाओगे, कि नेक्स्ट 2 साल तक 60,000 कमाओगे, कि नेक्स्ट 3 साल तक 60,000. ये नाम कितने टाइम तक चलेगा? क्योंकि कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जब कंपटीशन बढ़ेगा, कोई दूसरा प्लेयर अच्छा आ जाएगा मार्केट में, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, कोरोना आ गया, आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, चाइना का इंपोर्ट ड्यूटी कट हो गया, चाइना से इंपोर्ट होने का माल चालू हो गया, आपका माल का डिमांड कम हो सकता है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो सकते हैं पॉपुलेशन के. इंडिया में अभी यूथ पॉपुलेशन है, जापान में सब बुढ़ा पॉपुलेशन है, वो चेंज हो गया तो आपका माल का डिमांड कम है. तो बड़े लेवल के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ. सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज which will determine how long you will be able to sustain those profits in future,
हाउ लॉन्ग यू विल बी एबल टू सस्टेन दोस प्रॉफिट। और ये काम होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का, CFAs का। वो लोग पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, पास्ट डेटा उठाते हैं, करंट डेटा देखते हैं, फ्यूचर में क्या क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कौन सा बिजनेस हमारे लाइन में आने वाला है, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस कैसे हैं, क्या चेंज हो रहा है, ये सब चेक करके आपके गुडविल की वैल्यू निकाल, गुडविल का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स की वैल्यू निकाले और बोलेंगे कि कितने सालों तक आप ये प्रॉफिट सस्टेन कर पाओगे। तो हमारे एग्जांपल में हम लोग सिंपल रखते हैं, ए और बी बोल रहे हैं कि 1 साल तक ये प्रॉफिट सस्टेन हो पाएंगे। कितने साल तक हो पाएंगे? 1 साल तक सस्टेन हो पाएंगे। 1 साल तक नाम के वजह से 60,000 कमाएंगे, सेकेंड ईयर से भाई कुछ चेंज हो जाएगा तो हमको मालूम नहीं। फर्स्ट ईयर 1 साल तक आप कितना कमाओगे? 60,000 कमाओगे नाम के वजह से, डेफिनेटली कमाओगे। तो 1 साल बाद, 1 साल तक, 1 साल में जो भी प्रॉफिट कमाओगे 60,000, वो कितने पार्टनर में डिवाइड होने वाले हैं? 3 पार्टनर में डिवाइड होंगे। तो ए और बी सी को बिठाएंगे टेबल पे, चाय पिलाएंगे और बोलेंगे सुन भाई सी, नेक्स्ट ईयर हम लोग 60,000 कमाने वाले हैं। तो अभी एडमिट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हम लोग 60,000 कमाने वाले हैं। उस 60,000 में वी विल डिवाइड 20 20 20 20 ए को जाएगा, 20 बी को जाएगा, 20 सी को जाएगा। सी को बोलेंगे ये जो 20 तेरे को मिल रहा है ना, ये तेरी मेहनत का पैसा नहीं है, ये हमारे नाम का पैसा है, तेरा हक नहीं है इस 20,000। सी भी बोलेगा ठीक है, मैंने भी कैलकुलेट किया है गुडविल, मेरे को भी लगता है आप 1 साल तक टिका पाओगे, ये मेरे हक का प्रॉफिट नहीं है। तो सी क्या करेगा? ऑन एडमिशन ही विल गिव ताबड़तोड़ दैट 20,000 टू ए एंड बी। कैपिटल तो ले गया, कैपिटल ए और बी का नहीं है, कैपिटल सी का ही है, उसका खुद का पैसा, बट उसके ऊपर 20,000 और लेके आएगा और किसको दे देगा? ए और बी को ताबड़तोड़ दे देगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 रुपया। व्हाई एम आई सेइंग शेयर ऑफ गुडविल? बिकॉज 20,000 उसका हिस्सा है ना, दिस इज शेयर, शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल इज 60,000, टोटल प्रॉफिट्स आर 60,000। सी 60,000 रुपया और बी को 60,000 नहीं देगा। क्यों 60,000 नहीं देगा? देखो सी नहीं था फिर भी ए और बी को 30-30 मिल रहा था, सी के आने के बाद भी उनको 20-20 तो मिल ही रहा है। उनका नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 का हो रहा है। नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 का हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सी नहीं होता तो भी ए और बी को 30,000 तो मिल ही रहे थे ना। सी के आने के बाद 20-20 तो मिल ही रहे हैं। जेब से कितना कट रहा है? ए का 10 कट रहा है और बी का 10 कट रहा है, यही 10,000 क्या होगा? यही 10-10। सी विल गिव इट टू ए एंड बी इन एडवांस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ए और बी हड़प लेंगे सी से, वसूल लेंगे सी से, सी को जक मार के देना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर इन दिस फर्म। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि पहले साल का जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी की डेवलप्ड गुडविल, सालों के नाम का पैसा आ रहा है। सी को बोलेंगे तू अकेला चालू करेगा ना, लॉस करेगा, लॉस, पहला साल लॉस करेगा, हमारे साथ है इसके लिए तेरे को मिल रहा है। सी भी बोलेगा ठीक है बात बराबर है, मैं आपको दे देता हूँ 20,000। तो सी से ये 20,000 ले लेंगे ताबड़तोड़। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ गुडविल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ गुडविल, which will be paid by whom to whom? New partner to the old partner, new partners to the old partner. Okay, now ये जो 20,000 मिलेगा ए और बी को, ये इसमें से ए कितना रखेगा और बी कितना रखेगा? थोड़ा सोच के बताओ। 10-10 रखेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, बट व्हाई 10-10? नॉट बिकॉज ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 10-10 is because of sacrifice ratio. This is because of sacrifice ratio. What was the sacrifice ratio of A and B? 1:1. 1:1. So logic क्या है? जो रेशियो में देखो, गुडविल क्या है? प्रॉफिट है। शेयर ऑफ गुडविल क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो जो रेशियो में ये लोग ने अपना सैक्रिफाइस किया फॉर द न्यू पार्टनर, वही रेशियो में इनको गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। दैट इज द लॉजिक। जो रेशियो में ये लोग ने सैक्रिफाइस किया है अपना हिस्सा, वो रेशियो में इनको गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ही है। जो फ्यूचर में सी को मिलने वाला था वो ताबड़तोड़ ए और बी को दे देगा। अब होगा क्या? आई विल कम टू द डाउट्स। अब होगा क्या देखना, जब भी एडमिशन होगा ना, तभी ए और बी बोलेंगे सी को कि तू 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आ। सी बोलेगा लेके आता हूं, प्लस 20,000 रुपीज और लेके आ। वो हमारा हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा।
10,000 ए को जाएगा, 10,000 बी को जाएगा, ठीक है। अब एक साल बाद जब प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे, एक साल बाद जब प्रॉफिट्स डिवाइड होंगे, तब 60,000 के प्रॉफिट होंगे और डिवाइड होंगे 20-20-20 बिटवीन ए बी एंड सी। अब कोई नहीं रोने वाला है, पहले और भी रोने वाले थे, अब कोई नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि देखो ए को 20 मिला लेकिन शुरुआत में ही 10 मिल चुका था सी से, बी को 20 मिल रहा है लेकिन शुरुआत में ही 10 मिल चुका था सी से, और सी को 20 मिला लेकिन क्या सी ने ऑलरेडी शुरुआत में कितना दे दिया था? 20,000 ए और बी को दे दिया था ना। तो सी का कुछ हुआ क्या नफा नुकसान पहले साल? हुआ क्या? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। सी ने ऑलरेडी वो पैसा दे दिया इन एडवांस टू ए एंड बी। सर क्यों एक साल का दिया? क्योंकि अभी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक साल तक गुडविल टिकेगी। अगर ये लोग एस्टिमेट करते कि 2 साल तक टिकेगी, 2 साल तक टिकेगी, 2 साल तक 60-60 कमाएंगे, तो फिर सी को 20 नहीं 40,000 देना पड़ता है ए और बी को। 2 साल का, पहले साल का 20, सेकेंड ईयर का 20। अगर ये लोग एस्टिमेट करते कि 3 साल तक 60-60-60 कमाएंगे, तो 3 साल तक सी को 20-20-20 मिलेगा। वो 3 साल का पैसा नाम के वजह से हो रहा है, तो सी हैज टू गिव 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन एडवांस टू द ओल्ड पार्टनर। दिस इज व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर सी एडमिट हो गया, 1 साल काम किया, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं नफा नुकसान, why the hell he will get admitted in the firm? That is a question आया होगा किसी के दिमाग में, क्यों करे? Why the hell he will get admitted in the business? Can you tell me a logical answer for that? He is bringing the capital. Sorry? Sir, He is bringing capital. हाँ, he is bringing capital, right? But पहले साल तो कुछ हो नहीं रहा है ना। sir, first year he has seen that there would be no profit, no loss, but next year he knows that he'll get the profit, so Yeah. that's why he's ready to get admitted. in the Absolutely business. right. नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है? 60 का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर हो सकता है 90,000, जो तीनों में बटेगा। किसमें बटेगा? ए बी एंड सी, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, लोग बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा बिजनेस का। तो फ्यूचर में क्या होगा? सबका बढ़ेगा प्रॉफिट, सी का भी बढ़ेगा। यही बिजनेस सी अगर अकेला करता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर उसको 3, 4, 5 साल भी लग जाते कमाने में। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। ऐसा नहीं है कि सी का नुकसान हो रहा है और बी का फायदा हो रहा है। सी भी सोचेगा ना, आगे मैं टिका रहूं तो बिजनेस में मेरे को फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स होने वाले। So on that logic, he will become a partner. He will give that share of goodwill to the old partners. Okay. So on admission, he is going to pay 2 things. Remember, 1, capital amount, and number 2, share of goodwill. Why am I telling share of goodwill? Will he give total 60,000 to A and B? Only the part Only which they part won't which get. he is going to earn. Only the part which he is going to earn in future. Only that part he is going to pay to A. Okay. Yes. Now tell me that out one by one, Harsh. Sir, but at the end of the year, when they means just tally the goodwill, it comes to approximately 90,000 or 1 lakh rupees. You So are telling will he the pay? profits. Yes, of the next year. profit comes to 1 lakh rupees. So then will he so- pay extra amount again, or the profits would be equally divided? No. Now see, what is Harsh asking, sir? 60,000 का प्रॉफिट सोचा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर 90 का हो गया, तो 90 हो गया तो किस में डिवाइड होगा? ए बी सी में। कितना मिलेगा? 30-30-30। ए और बी का तो चलो फायदा ही है, उनको पहले 20 मिल चुका था, अभी एक्स्ट्रा 10-10 मिल रहा है प्रॉफिट्स में। और सी का भी फायदा है। सी ने क्या सोचा था? मेरे को तो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन हो गया 30 का प्रॉफिट, समझो हो गया, तो चांदी है, तो वापस कुछ ए और बी लेने वाले नहीं है सी। जो हुआ वो उसका फायदा। ओके, जो हुआ वो उसका फायदा। ऑपोजिट टू दिस, उल्टा भी हो सकता है कि 60,000 के जगह पे आपने सोचा था 60,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन साला हो गया प्रॉफिट 45,000। आपने सोचा था 60 होगा नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, आपने तो 20,000 वसूल लिया सी से, लेकिन साला प्रॉफिट हुआ कितना? 45, which will be divided between A, B and C as what? 15,000। अब क्या हुआ? लफड़ा हो गया। ए और बी को तो थोड़ा कम मिला ही, सी को भी 5,000 कम मिल रहा है। सोचा था 20 का लॉस हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, 5,000 और गया। कांट से बिजनेस इज रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सो
बोल नहीं सकते कि बिजनेस क्या करेगा, इसीलिए तो गुडविल के पीछे इतनी दिमाग खोड़ी होती है। ऐसे ऐसे 2-3 महीने नहीं लग जाते और ऐसे ऐसे लाखों रुपए नहीं देते इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को टू वैल्यू द गुडविल, बिकॉज वॉट एवर एस्टिमेट दे फाइंड आउट ऑफ गुडविल should be somewhat accurate, should not be vague. So if you are expecting profits of 60,000 in the next year, it should be approximately equal to 60,000, either 59 or 61 or 58 or 62. It should not be very much diverted from your estimated figure. Are you understanding this? So that's why बड़ा complicated process होता है। आपको वो सब estimations नहीं है, आप जब CA MBA करोगे तब आ जाएंगे, CA या CFA सॉरी, वहां पे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे एडमिशन में तो सब दिया होगा आपको, सम्स वगैरह एवरीथिंग, वैल्यूज वगैरह भी दी होगी, शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल, कैलकुलेशन का मेथड सब कुछ दिया होगा। यस वरुण। Sir, what if they think that it's gonna keep rising, the profit? Yes, that is also a possibility. That's what I said. That estimate matters. That estimate matters. So if you are expecting your next year's profit to be 60, uska next year's profit to be 90, uska next year's profit 20, and due to your past name reputation, you are expecting this profit at least to rise for 3 years. At least to rise for 3 years. What you will do? You will take an average of these 3 years. What is the average? 60 plus 90 plus 120 का average कितना होता है? 90,000. So on an average, you are expecting 90, 90, 90 to be earned for 3 years. 90, 90, 90 to be earned for 3 years. So how much that new partner will get out of that 90? 1/3, 30. So 30 for first year, 30 for second year, 30 for third year. So what will be his share of goodwill? 90,000. 90,000 उससे ताबड़तोब मंगवा लोगे आप आज के आज. Pay us 90,000 ताबड़तोब today for the share of goodwill. But for how many years can they do this? That is what is the matter of expectation, estimation. Government policy, new products, new competitors, data, data, data. क्या होने वाला है फ्यूचर में, कोई प्रेडिक्ट करना जरूरी है. तो कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी सेम रहने वाला है, ये सब आपके एस्टिमेट्स के ऊपर डिपेंड है. तो आप एक प्रॉफिट फिगर लेते हो, प्रैक्टिकल वैल्यूएशन कैसे होती है? प्रॉफिट आपने अभी तक 60,000 कमाया तो 60,000 को रखोगे सामने. अब उसमें आप टिल्ट चेंजेस करते जाओगे. फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं तो 60 का शायद 55 हो जाएगा. नहीं बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइसेंसेस मिल रहे हैं आपको, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लाइसेंसेस हैं, तो कॉम्पिटिशन नहीं है तो बढ़ सकता है या एटलीस्ट सेम रह सकता है. ओके, डिमांड बढ़ने वाली है इस प्रोडक्ट की. जैसे कोरोना आ गया तो इसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा ये की डिमांड बढ़ने वाली है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एस्टिमेट करोगे. जो एनवायरमेंट है, बिजनेस का एनवायरमेंट है, मार्केट है, उन सब का डेटा ले लेके आप एक एस्टिमेटेड फिगर पे. गुडविल कैन नेवर बी एन एक्यूरेट अमाउंट. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. So you can never get a correct exact value of goodwill, but the best thing is to get a nearest approximate answer. जितना हो सके. Yes, Moksh. Sir, like the example of profit, sir, ऐसे लॉस का भी एग्जांपल हो सकता है. बोला तो बताया तो सही अभी लॉस का 45,000. सिर्फ ऐसे ही नहीं सर. हाँ. तो मतलब ए और लॉस बी में कैसा होगा गुडविल? ओए महान, गुडविल इज ड्यू टू प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी. कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है तो विल न्यू पार्टनर पे नहीं गुडविल. वो तो बोलेगा मैं अकेला भी करूंगा तो भी लॉस करूंगा. लॉस मेकिंग बिजनेस का कोई गुडविल होगा? होगा ही नहीं. समझा? बट सैडली दिस क्राइटेरिया इज चेंजिंग नाउअडेज ड्यू टू दिस स्टार्टअप्स. Startups are all loss making, all damn loss making. Uber, Ola, Swiggy, Zomato, Paytm. मैं आज पूरी लिस्ट आपको भेजता हूँ ग्रुप में, आप सबके लॉसेस देखना, आके चौक जाएंगे. ऑल आर लॉस मेकिंग सिंस 8 years. ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम सब लॉस मेकिंग. फिर भी इनका वैल्यूएशन बढ़ते ही जा रहा है. बायजूस इज लॉस मेकिंग, ऑल आर लॉस मेकिंग. इनका वैल्यूएशन मतलब इनकी गुडविल बढ़ते ही जा रही है. क्यों? क्योंकि नाउ दे हैव चेंज द कैलकुलेशन. दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट द सेल्स. जितना ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा गुडविल. सेल्स के ऊपर गुडविल ले रहे हैं. अरे भाई सेल्स करते हो लेकिन कमाओ तो सही, प्रॉफिट तो होना चाहिए, वो देख ही नहीं रहा है. दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट सेल्स. जिसका सेल्स ज्यादा उसका गुडविल ज्यादा, ऑन एन अजम्पशन कि भाई कभी तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, कभी तो होगा, उसका अजम्पशन है. अभी तक हुआ नहीं है, किसी में भी नहीं हुआ आज तक. स्टार्टअप
टिल दे आर अज्यूमिंग के होगा होगा होगा, उसके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। बट ये कितना सही है कितना गलत है, ओनली फ्यूचर का 4-5 years 7 years विल टेल। इट इज नो वन नोइंग दैट। अभी तो बढ़ाते जा रहे हैं, $1 billion से $2 billion, 2 का $4 billion, 4 का $6 billion, $8 billion, एक दूसरे को खरीदते जा रहे हैं बिजनेसेस बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ भी प्रॉफिट नहीं है ऑन बुक्स, दैट इज So this is against conservatism, no? is, but then no, everyone is doing it, everyone. It's not like one company is doing it, everyone has put their heads into that. Whoever values the company nowadays is valued on sales base, they are not looking. इसीलिए तो क्या होता है, 10 में से 8 स्टार्टअप्स या तो बंद हो जाते हैं लॉस में कर करके, पैसा उड़ गया, या तो फिर मर्ज हो जाते हैं। आपने सुना होगा टाइनी आउल फूड डिलीवरी ऐप, ग्रीन कार्ड था फूड डिलीवरी ग्रोसरी ऐप, ये सब मर्ज होके दूसरे, फूड पांडा था, उसको खरीदते जा रहे, एक दूसरे को खरीदते जा रहे, मर्ज होते जा रहे, अपना बिजनेस बेच के निकल रहे, या तो लॉस में बंद होते जा रहे, कंप्लीटली शट डाउन, ग्रीन कार्ड कंप्लीटली शट डाउन और पैसा डूब गया ओनर का। 10 में से 8 बिजनेस डूब रहे हैं। आपने मासायोशी सोन का नाम सुना है? मासायोशी सोन सॉफ्ट बैंक का सीईओ है, जापानीज कंपनी है सॉफ्ट बैंक। वो सब स्टार्टअप में ही पैसा डालता है, ऑनलाइन सर्च करना यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसने आज तक $1 trillion, $1 billion नहीं, $1 trillion स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। 1 trillion मतलब 1000 billion dollar ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस, पुट इट इन स्टार्टअप। ओके, और उस $1 trillion में से नहीं तो आधा पैसा डूब चुका है। $500 billion डूब चुका है, जो वापस नहीं आने वाला, लॉसेस। कहां गया? आपके डिस्काउंट्स में। आपको मिलता है ना ईयरफोन 500 रुपए का 300 रुपए में, दुकान में जाओगे तो 500 रुपया, इधर मिलेगा 300 रुपया। मोबाइल फोन दुकान में खरीदने जाओगे 15,000, ऑनलाइन लोगे 10,000। कितना डिस्काउंट रहता था मालूम? अभी कम किया है लोग डिस्काउंट। जोमेटो पे होटल में खाने जाओगे 500 रुपया, इधर मिल रहा है 200 रुपया, 300 रुपये, 50% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ये गया है उसके जेब में से, वो बेचारे ने $500 बिलियन का नुकसान किया, वो सब हमने खा लिया इधर बैठ के। ओके, तो देयर आर चांसेस ऑफ प्रॉफिट। तो क्या फायदा हुआ ये कंपनी का? क्या फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर एक भी कंपनी चल गई तो उसको 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट देके जाएगी वैल्यूएशन में, वो भी प्रॉफिट किया तो, अदरवाइज वैल्यूएशन में। फ्लिपकार्ट कैसे चालू हुआ था? 1000 फ्लिपकार्ट चालू हुआ था 2009-10 आसपास में, 10-15 करोड़ का कैपिटल से चालू हुआ था, बढ़ते गया, एक ने दूसरे को खरीदा, दूसरे ने तीसरे को, अभी भी लॉस मेकिंग है फ्लिपकार्ट। दूसरी कंपनी ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, चौथे ने खरीदा, लास्ट में वॉलमार्ट ने खरीदा। कितने में खरीदा? $1,20,000 करोड़, $15 बिलियन में खरीदा। $1,20,000 करोड़ में खरीदा, $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीदा वॉलमार्ट ने। अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन वॉलमार्ट क्या सोचेगा? कभी तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगी, सेल्स बढ़ेंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगी, कोई नया बकरा आएगा, मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा। अभी मैंने $15 बिलियन में खरीदा है, कल 2-4 साल के बाद $20 बिलियन में उसको बेच दूंगा। अभी तक कोई प्रॉफिट में है नहीं। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट्स। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट ओवर द नेक्स्ट 4 years or 5 years. You never know. Sir, what if Sir, but the ऐसे तो- C brings एक goodwill? मिनट, मैं डाउट्स पे आता हूँ वन बाय वन। यस नीर, Sir, what if C brings goodwill? So what A and B will do? how he will get goodwill? He should be a very influential person. नाम, Like he has contacts and everything. हाँ, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जिसका बहुत नाम और रेप्यूटेशन होता है मार्केट में, या फिर अमिताभ बच्चन टाइप, विराट कोहली टाइप। उसको मैं लेके आया मेरे फर्म में, तो साला मेरा फर्म ऐसे किधर से किधर पहुंच जाएगा। तो वो गुडविल देगा नहीं, वो तो कैपिटल भी नहीं देगा बिजनेस को, मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा गुडविल। द बिजनेस विल पे टू दैट न्यू पार्टनर, बट दैट इज वेरी रेयर सिचुएशन, ओनली इफ ही इज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, ओनली दैट। गॉट इट? So you will have to pay that partner more to get him into the business. ये खाली 1.1001% chance. Otherwise the partners are all normal people doing the business. Okay? Yes, Priya.
So in this example, the entire thing we are assuming the average profit method, right? Average. So whatever we earn, that is the goodwill thing. So What if is we- it? so Whatever we earn, that is the good. if they earn 90, then the entire is 90. So C has to give 30,000 to. Yes. So first it was estimated 60, but then they earn 90. So But नहीं. See, अभी estimate हो गया 60. अभी 20,000 ले लिया. Then next year, whatever they earn, whether they earn 90, whether they earn 70, 60, 40, 45, 50, doesn't matter. Whatever the profits will be shared in the that profit. was the because of goodwill of A and B they earned 90. So why is C getting the extra 10,000? नहीं, that's what I'm saying ना कि आपने estimate क्या किया है 60. तो पहले तो आपका actual profit should be around 60. Now, by if any chance they go to 90, it means it is not due to your name. It is due to some unforeseen lottery event. Just like Corona happened suddenly and PPE kits का sale बढ़ गया या sanitizer का sale बढ़ गया. That was not due to the goodwill of Dettol or goodwill of Savlon or goodwill of the sanitizer making companies. That was due to purely luck. So that whatever you get in future, after you have estimated goodwill and whatever you get in future, whether more or whether less, that will be divided in the profit. That is not dependent on your name. बोलने का मतलब. Got it? If it was dependent on your name, then पहले ही आप 90 estimate कर लेते और 90 का 30 उससे ले लेते. वही मैं आपको बोल रहा हूँ. जो estimated profit है वो एकदम accurate profit के आजू बाजू का ही figure होना चाहिए. उसके बाद जो changes है that is luck. So if there's loss, then even C will pay for the loss. Yes. All ये बताया ना, ये लॉस हुआ है. लॉस तो होगा नहीं, इतना प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस और सडनली लॉस होगा नहीं. अगर हुआ, फायर हो गया, गोडाउन में फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, तो लॉस भी हो सकता है. लॉस विल बी आल्सो शेयर्ड बाय ऑल. दैट इज ऑल लक टाइप. दोस आर कॉल्ड एज ब्लैक स्वान इवेंट. ब्लैक स्वान इवेंट मतलब वेरी रेयर चांसेस ऑफ हैपनिंग, नॉट रेयर. व्हाट वी अज्यूम इन बिजनेस इज प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द मैक्सिमम चांसेस ऑफ हैपनिंग, वो आपका आंसर है. यस भव्या. सर मतलब ये जो स्टार्टिंग में हम अमाउंट लेते हैं सी से, वो अग्रीमेंट में होता है डीड में या ऑफ द बुक? डीड में वैल्यू नहीं होती है क्योंकि अमाउंट तो चेंज होते रहेंगे. तरीका होता है कि कैसे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे. कि एवरेज प्रॉफिट कितने साल का एवरेज, लास्ट 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का एवरेज, और फ्यूचर में कितना साल तक टिकेगा, 1 ईयर 2 ईयर, वो एस्टिमेट कैसे करने वाले हो आप. हाउ विल यू कैलकुलेट दैट अमाउंट, वो दिया रहता है. दैट मेथड इज स्पेसिफाइड इन दैट. और प्रसिद्धि. यस सर, इसमें ये लोग ऐसे पहले से एस्टिमेट करके सी के पास से अमाउंट ले लेते हैं ना गुडविल का. तो उसकी जगह वो लोग जब भी सामने वाले पार्टी हमें गुडविल दे तो तभी ही नहीं ले सकते, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवांस फ्रॉम सी. सामने वाले पार्टी को गुडविल दे तभी नहीं ले सकते मतलब नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी. What are you saying? I didn't get. Hello, प्रसिद्धि. प्रसिद्धि ऑडिबल. हाँ. सामने वाले पार्टी को गुडविल मतलब एट द टाइम ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स यू आर सेइंग नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर व्हेन दे एक्चुअली अर्न दैट टाइम. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस सर. नहीं, वो तो अभी का ही, अभी नाम का पैसा है ना, अभी का अभी उसको देना पड़ेगा. नेक्स्ट ईयर हो ना हो, कितना प्रॉफिट हो, सपोज कुछ अलग इवेंट भी आ जाए, हु नोज. अभी जैसे उसने बोला लॉस हो गया तो फिर तो वो बोलेगा लॉस हो रहा है, मैं गुडविल दूंगा ही नहीं, क्यों दूं. तो ऐसा कुछ इवेंट को आपको अभी, वो तो फ्यूचर का रिस्क है क्या होने वाला है. अभी आपको लग रहा है जेन्युइन बेसिस पे, क्या आप पिक्चर देखने गए, आपको टिकट एडवांस में देनी पड़ती है. आप बोलोगे पिक्चर लेने के बाद, पिक्चर देखने के बाद टिकट का पैसा दूंगा मैं. तो पिक्चर बुरी लगी, कुछ 19-20 लगी, तो आप बोलोगे मैं पैसा नहीं दूंगा, फिर तो दे कांट रन आफ्टर यू. इट इज लाइक दैट. 1 year हैज हैपेंड ना. सो बिफोर ओनली एडमिशन, बिफोर द एडमिशन उसको एडमिट करने ही नहीं देंगे अनलेस एंड अंटिल ही पेज द गुडविल. बिफोर ओनली ही हैज टू. Got it? And so the partner can be admitted anytime in the business, right? Problem? No, the partner can be admitted anytime in the business, right? Anytime. So then the amount of goodwill will change, right? Means No, like if he is admitted after 6 months. हाँ.
So instead of paying 20,000, he'll just pay 10,000, right? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. 1 year then will be calculated from his admission to the next 6 months. बिजनेस तो चालू है ना, आपका अकाउंटिंग ईयर खाली 6 महीने में खत्म हो रहा है. अब आप एस्टिमेट कर रहे हो कि बिजनेस का गुडविल 2 साल तक चलेगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन वहां से 2 साल. अपना ईयर एंडिंग तो खाली बॉर्डर लाइन है, इस दिन पे फाइनल अकाउंट बना रहे हो, वो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि बिजनेस कैसा कर रहा है. बिजनेस अच्छा कर रहा है 2 साल तक, तो 2 साल का वसूल करो. फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन वहां से लेने का 1 साल 2 साल 3 साल. इसीलिए बोला है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू एडमिट हिम ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, तो दोनों इंक्लाइन हो जाए, आगे का गुडविल का ईयर और आपका फाइनल अकाउंट इसके इन सेम लाइन. Okay, sir. Sir, even if they admit in the middle of the year, still he would get the entire year ka profits, na? Yes, because you are expecting na, from the date of his admission till the next 1 year, you will be earning this 60,000. So that means 30,000 this year, 30,000 in the next 6 months. That is the logic. So you will still have to pay full 20,000 for his share. Got it? Yes, Varun. So then can't someone just secretly expect their goodwill to go on indefinitely? Indefinitely ये कोई भी बिजनेस में आज तक पास में देखा नहीं गया है. अच्छे से अच्छे बिजनेस भी indefinitely रन नहीं कर सकते ना. Big assumption. कोई भी बिजनेस हो, आफ्टर सर्टेन ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद कुछ ना कुछ आने वाला है. There is no monopoly which is there in the world since indefinite time. And it's business. It is so very risky. Indefinite तो दूर की बात है. 3-4 साल के बाद भी बड़ी चीज होती है एस्टिमेट करना. So 3 to 5 years is the general estimate of goodwill. 3 to 5. Max. Who knew Corona would come? So many businesses would perish. Every 5-10 years, something or the other happens. Subprime crisis or Corona or that bird flu or swine flu or something happens in the world. A dot-com bubble every 10 years, 20 years. You can't expect that business to run for that long. Any line? Yes, Kirtan. So, like in some of the sums, we had this thing that if A is bringing his son into the business, so B will say that you give your part of the share and I won't give any part. So when C pays goodwill, so only A will receive that. Absolutely right. I am coming to that sacrifice ratio. Yes. See, now coming back to the entry. Entry कैसे करनी है आपको गुडविल की, ध्यान से देखो. गुडविल की एंट्री इस बुक में कैसे करनी है. गुडविल के होते हैं टोटल 4 केस, वैसे 5 है, 5वां केस इज नो एंट्री. 4 केसेस ऑफ गुडविल है आपको 12th स्टैंडर्ड में. ओके, उसमें मैं कर रहा हूं केस 1. ओके, अब ये जो एंट्रीज आप लर्न कर रहे हो ना 12th स्टैंडर्ड में, दीज आर आउटडेटेड एंट्रीज. 12th में जो एंट्रीज है ये आउटडेट हो चुकी है. ये एंट्री कोई फॉलो नहीं करता है, ये थोड़ी वेग है, लॉजिकल भी नहीं है, वेग एंट्रीज है. But still it is there in your syllabus, so we are doing that. Real CA फाउंडेशन में आप लर्न करते हो एंट्री, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना. केस 1 बोलता है न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash. New partner brings his share of goodwill in cash. That is case 1. Okay. एंट्री होती है इसकी, पहले मैं एक्चुअल जो आपको 12th स्टैंडर्ड में एंट्री है वो लिख रहा हूं. इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कितना लेके आएगा गुडविल में? हमारे एग्जांपल में हाउ मच गुडविल इज सी सपोज टू पे टू ए एंड बी? 20,000 शेयर ऑफ गुडविल. जो फ्यूचर में उसको 1 साल बाद प्रॉफिट होने वाला है वो पैसा अभी का अभी दे देगा. बीइंग गुडविल brought in cash. ओके, और सेकेंड एंट्री में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो एंट्री होगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट. ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिया हुआ है थियरी में. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. हु आर द ओल्ड पार्टनर इन अवर केस? ए कैपिटल एंड बी कैपिटल. ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइस रेशियो. ये भी मैं बताता हूँ. और ये होगा 20,000, 10,000 और 10,000. This is being goodwill distributed to old partner in sacrifice ratio. ये एंट्रीज होती है. इसमें हमने क्या करना है, ये देखो, ये कैश टू गुडविल, गुडविल टू ए टू बी. इसका लॉजिक समझना है ना, तो ये गुडविल देखो कट हो रहा है. कैन यू सी दैट?
तो व्हाट इज द नेट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. कैन यू सी दैट? गुडविल इज कट. हॅलो. तो कैश टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल म्हणजे काय? म्हणजे सिंपल, नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आया ना तो 1,20,000 लेके आया, 1 लाख उसका कैपिटल, वो कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल, और 20,000 लेके आया गुडविल का. वो पैसा कौन लाया? लेकिन हो किसका गया? ओल्ड का हो गया. तो बुक्स में हम लोग न्यू पार्टनर का नाम ही नहीं दिखाते. दैट इज द फ्लॉ ओवर हियर. बुक्स में न्यू पार्टनर का नाम ही नहीं दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू, बट है 12th में. तो 12th में यही करना है. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. पैसा लाया न्यू पार्टनर 20,000, लेकिन बुक्स में क्या दिखा रहे हो? ओल्ड पार्टनर पैसा लेके आ रहा है. कैश टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. बिजनेस में पैसा आया, ओल्ड पार्टनर आर द गिवर. ये कैपिटल किसका है? ओल्ड पार्टनर का. ये पैसा किसका हो गया? ओल्ड पार्टनर का. हक किसका है? ओल्ड पार्टनर का. इज दिस क्लियर? सर क्या लॉजिक से ये गुडविल डेबिट और क्रेडिट हो रहा है? हाँ, अभी ये गुडविल डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक ये बताता हूं. देखो, ये भी एंट्रीज जो दी गई है आपको सिलेबस में, ये उल्टा ऑर्डर है. रियल ऑर्डर इज दिस इज 1, दिस इज 2. द फर्स्ट एंट्री इज एक्चुअली दिस, गुडविल टू ए टू बी. ये होना चाहिए, सैडली है नहीं. गुडविल टू ए कैप टू बी कैप म्हणजे काय? गुडविल इज एन एसेट. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. तो आप इमेजिन करो गुडविल इज अ फर्नीचर. तो फर्नीचर टू ए टू बी. तो बिजनेस में फर्नीचर आया, कौन लाया? ए और बी लाया 10-10 हजार. और सेकेंड स्टेप में ये फर्नीचर हमने बेच दिया मार्केट में. तो कैश टू फर्नीचर, वैसा कैश टू गुडविल. वी सोल्ड दैट गुडविल इन द मार्केट जस्ट लाइक वी सेल द फर्नीचर एंड वी गॉट द मनी. दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट गुडविल. Got it? So asset आया and you sold off that asset in the market. That is the actual logic. But theory में 12th standard में आपको वो नहीं दिया, ऐसा दिया हुआ है. Cash to goodwill and then goodwill to old partner. You divide them in which ratio? Which ratio you will divide this goodwill का amount? ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है. Sacrifice ratio. Why sacrifice? Why sacrifice? Why not old ratio? Why not new ratio? Why new तो possible ही नहीं है. Why not old ratio? Why sacrifice ratio? Because the sacrifice, the partner which sacrifices more will get Exactly. will get more goodwill. Goodwill क्या है? Goodwill क्या है? Share of profit है. Goodwill is share of profit. So the ratio in which they are sacrificing is the ratio in which they will get back the amount of goodwill from the new partner. I'll give more example. Amount के साथ और entry के साथ. Let us take a different sacrifice. यहाँ पे तो 1:1:1 था, OR भी 1:1, SR भी 1:1, same था. Let us take somewhat different example. Let us take the example where one partner sacrifice. कल हमने किया था. Let us take this example. See, here what was the old ratio? I'm sorry. What was the old ratio? 7:3. Can you all see that? Hello. What was the sacrifice ratio? 1:0. Who is sacrificing over here? I think the names were Ram, Bharat and Love. Who was sacrificing over here? Only Ram. Only Ram. Only So Ram. who should get the share of goodwill? Only Ram. Only Ram. Let us take a hypothetical example. Let us assume they were making profits of say 10,000 rupees. Before the admission, they were making a profit of 10,000 rupees. Ab earlier profit were shared by Ram and Bharat in the ratio of 7:3. 7,000 to Ram and 3,000 to Bharat. Are all of you with me? पुराना प्रॉफिट 7,000 और 10,000 में बट रहा था. अब क्या हुआ? लव भी एडमिट हो गया. लव एडमिट होने के बाद नेक्स्ट ईयर वापस सेम अजम्पशन है, 1 साल तक टिकेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1 ईयर तक टिकेगा और आपका नाम का पैसा फॉर 1 ईयर. 1 ईयर आप कमाओगे, 1 साल तक कमाओगे 10,000 रुपए. अब ये 10,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट ईयर? राम, भरत और लव तीनों में होगा. कौन से रेशियो में होगा? 5:3:2. ये रहा आपका न्यू रेशियो 5:3:2. तो कहना है से 5,000 राम को, 3,000 भरत को और 2,000 लव को जाएगा. इज दैट राइट? नाउ इसमें से धम पछाड़ा कौन करेगा? रोएगा कौन? टांग पीट पीट के. देखो भरत रोएगा क्या? भरत
भरत का कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं सर, उसको तो इतना ही मिल रहा है। उसको तो इतना ही मिल रहा है। राम को कितना मिल रहा था? 7, अभी कितना मिल रहा है? 5। तो किसका कम हुआ प्रॉफिट? राम। तो ये जो गुडविल का, अच्छा गुडविल का कितना पैसा अच्छा पहले बताओ, गुडविल का पैसा कौन किसको देगा ये बताओ। गुडविल का पैसा who will pay to whom? Love will give Love will pay to the old partner, new partner will pay to old partner. old partner में भी किसको जाना चाहिए आपके हिसाब से ये पैसा? राम को जाना चाहिए। राम को जाना चाहिए। Only Ram. कितना पैसा देगा लव? कैन यू टेल मी हाउ मच मनी विल लव गिव? Will love give 10,000? He give 2,000. 2,000. Is share of Fully goodwill? of this profit. Share of profit, that is share of goodwill 2,000 किसको जाएगा? खाली राम को जाएगा, भरत को जाएगा ही नहीं। दिस इज द रीजन यू डू इट इन सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि अगर भरत को भी दे दिया आपने, इक्वली दे दिया 1,000 तो भरत की तो चांदी है, राम को नुकसान है। दिस शुड नॉट हैपन। गॉट इट? So this division of goodwill will be always done in which ratio? Old ratio or sacrifice ratio? Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Entry क्या बनेगी? What are the entries? Case 1 we just now saw. What are the entries? To goodwill 2,000, 2,000. Cash to goodwill 2,000, 2,000, and then goodwill to old partner. Capital. Who are the old partner? Ram cap and Bharat cap. लेकिन इसमें से 2,000 में से हाँ राम को कुछ जाएगा, सॉरी भरत को कुछ जाएगा, 0 पूरा का पूरा राम को। सर भरत लिखे ही ना, खाली गुडविल टू राम लिखे तो चलेगा, दौड़ेगा। जो नील है वो लिखने की जरूरत नहीं है। खाली मैंने लॉजिक समझाने के लिए दोनों को घुसा दिया कि ओल्ड पार्टनर को जा रही है, ओल्ड पार्टनर में सिर्फ राम को मिलेगी, भरत को कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। समझ में आई बात? जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना गुडविल मिलेगा, क्योंकि गुडविल क्या है? फ्यूचर के प्रॉफिट का शेयर ही है। समझा कि नहीं? We'll take one more example. You tell me now how will you tackle? देखो one more example I am showing you. One more where the old ratio and the sacrifice ratio are, let us say, different. Old ratio and sacrifice ratio are different. This one we can take. 5:3 वाला है। 5:3. ये रहा। Let us take this example. ध्यान से सोच के बताओ। रेड, व्हाइट एंड आई थिंक कुछ तो था ब्लैक। What was the old profit sharing ratio? 5:3. तो समझो ओल्ड प्रॉफिट्स वेर 32,000। ये आपका प्रॉफिट था, ये आपका गुडविल का नाम का प्रॉफिट था, आप कमा रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स कमा रहे हैं 32,000। ये 32,000 ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:3 ओल्ड रेशियो। तो कितना जाएगा? इसको जाएगा 10,000, इसको जाएगा 20,000 and 12,000. इसको जाएगा 20,000, इसको जाएगा 16,000। इज दैट राइट? So 12,000, no? Sorry, 20 and 12,000. My bad. 20,000 and 12,000. Am I right? 20,000 and 12,000. Is this part clear? All of you got that? 20,000 and 12,000 old profit sharing ratio. Now, नया पार्टनर एडमिट हुआ, फिर भी 1 साल तक आप 32,000 अर्न कर रहे हो, क्योंकि गुडविल 1 साल तक टिकेगी। 32,000 would be divided into how many parts in future? 3 parts: red, black and red, white and black. Red and white were old partner. अभी रेड, व्हाइट एंड ब्लैक आ गया। रेड, व्हाइट, ब्लैक में कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? ये 2:1. 2:1. So I think that comes to 4, 8, 32, 16,000, 8,000 and 8,000. अब कंपेयर करो, पहले रेड को मिल रहा था 20, अब रेड को कितना मिल रहा है? 60. कितना कम मिल रहा है? 4,000. व्हाइट को मिल रहा था 12, अब कितना मिल रहा है? 8,000. कितना कम मिल रहा है? 4,000. 4,000. और ब्लैक को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 8. तो ऑब्वियसली हु विल गिव गुडविल टू हुम? Black will give it Black to red will and give the white. goodwill to the old partners. Yes or no? बैठे बैठे मिल रहा है, वो उसके हक का पैसा नहीं है, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। कौन सा अमाउंट किसको मिलना चाहिए? रेड को कितना मिलेगा और व्हाइट को कितना मिलेगा? दोनों को 4,000. दोनों को 4. Will you divide that 8 in the ratio of 5:3, 5,000 and 3,000? Would that be right? No. No. That will be injustice.
injustice to Mr. White and just extra justice to Mr. Black. Undue justice. Is this clear? So it should not happen. इसीलिए वो sacrifice ratio डाला हुआ है वहां पे. समझ में आई बात आपको? Sacrifice ratio म्हणजे जो रेशियो में ये लोग ने शेयर दिया, जो रेशियो में इनका फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, वही रेशियो में इनको गुडविल का पैसा मिल जाएगा. So what should be the entry? Can you tell me what should be the entry over here? 2 entries in case 1. Cash to goodwill कितना होगा? 8,000. And goodwill to red capital to white capital. Red to white कितना आएगा? Goodwill to red to white 8,000. 4,000. Why the hell 4? Sacrifice ratio. सम्स में स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं. ओल्ड रेशियो में दैट इज रॉन्ग. ओल्ड रेशियो डालोगे आप अनड्यू इनजस्टिस कर रहे हो. एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को एक्स्ट्रा दे रहे हो फोकट. गॉट इट? तो ऑलवेज रिमेंबर गुडविल का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशियो में ही होता है बिकॉज इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. केस 1 क्लियर हुआ सबको? 2 एंट्रीज. अभी इसका सीए फाउंडेशन में क्या एंट्री होता है वो मैं आपको बताता हूँ. देखो एक्चुअल एंट्री क्या है, ये तो आपको इधर है इन 12th स्टैंडर्ड. इसकी रियल एंट्री क्या होती है सीए फाउंडेशन में वो भी देख लो. एंट्री होती है कैश टू, हमारा एग्जांपल पे आ जाओ वापस. सबसे पहला वाला एग्जांपल, कैश टू सी कैपिटल ये होता है 20,000 और सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल ये होती है. इसमें भी सेम ही है, खाली आप क्या बता रहे हो, पहले सी पैसा लेके आया, फिर सी का कैपिटल कम किया और ए और बी का कैपिटल बढ़ा दिया. पहले कैश टू सी कैपिटल, फिर सी कैपिटल घटा, ए और बी का बढ़ गया. दिस इज द प्रैक्टिकल वे. इसमें भी सी कट हो जाता है. नेट एंट्री इज कैश टू ए टू बी, बट दिस इज द करेक्ट वे. We won't use super profits वाला method. In CA you use super profits only, but average profit भी है वहां. There you use super profit, but average भी है. Average profit भी है तो ऐसे करना है. बट एंट्री समझा? व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंट्री? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की जगह कैश टू कैपिटल एंड कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर. लेकिन 12th में ये मत कर देना, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया आपको. ये वाला समझा आपको? कैश सी लेके आया और फिर वो सी का कैपिटल कम किया और ए और बी का बढ़ा दिया. सी का कैपिटल कम हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, और ए और बी का बढ़ गया 10. इज दिस क्लियर? I'm just getting my charges. My video will be on. So that's your case 1. Case 1. Come on, tell me. Case 1 का मतलब क्या? What is case 1 in the sum for goodwill? New partner brings his share of goodwill in cash. मुझे बताओ, न्यू पार्टनर कितना गुडविल देगा ओल्ड पार्टनर को? शेयर देगा कि टोटल देगा? Only the share of. Only the share of goodwill. वो शेयर ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड कर लेगा ओल्ड पार्टनर? Sacrifice ratio में. एंट्री क्या बनेगा? हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 1? 2 एंट्री. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश टू गुडविल. व्हाट इज द सेकंड एंट्री? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो. इज दिस क्लियर? देयर इज केस 2 आल्सो. आज हम लोग केस 2 ही कर रहे हैं, केस 1 एंड केस 2. उसके बाद प्रॉब्लम पे जाते हैं. केस 2 समझना बहुत आसान है अगर आपको केस 1 आ गया. केस 2 में क्या है? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in cash and it is withdrawn by old partner. It is withdrawn by old partner. Withdrawn का मतलब घर पे लेके गया पैसा, ड्रॉइंग्स कर ली. तो 1 और 2 में फर्क क्या है? 1 में क्या है? गुडविल का पैसा जो भी आया बिजनेस में पड़ा हुआ है. केस 2 में गुडविल का पैसा आया और बिजनेस से ताबड़तोड़ लेके गया घर पे. ये तो 10-10 हजार मिला था ना, घर पे लेके गया पार्टी मनाने के लिए. तो ड्रॉइंग्स का एक एक्स्ट्रा एंट्री आता है. वेरी सिंपल इट इज. पहला 2 एंट्री सेम है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट लाइन इज सेम. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री इज सेम. व्हाट आर द फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज? कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. सैक्रिफाइस रेशियो मिला. थर्ड एंट्री क्या होगी मेरे को बताओ? घर पे पैसा लेके गया ए और बी 10,000. व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश. ड्रॉइंग्स किधर ट्रांसफर होता है? कैपिटल. तो इट इज ड्रॉइंग्स टू कैश एंड कैपिटल टू ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स कट. वी पास अ डायरेक्ट एंट्री. ए कैप, बी कैप,
to cash. A cap, B cap to cash 10,000, 10,000, 20,000. सर क्या दोनों को कंपलसरी 10-10 ही विड्रॉ करना है? नहीं, जितना विड्रॉ करना है कर सकते हैं. सम में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो आप अज्यूम करते हो कि 10-10 इक्वल, मतलब जितना आया है उतना लेके गया. आधा लेके गया तो 5-5, 1/4 लेके गया तो 2,500, 2,500. कुछ नहीं दिया तो 10-10 लेके गया घर पे, मजा किया, पार्टी मनाया, ताबड़तोड़ पैसा आया था गुडविल का. इज दिस क्लियर? So how many entries in case 2? 3 entries. First 2 entries are same: cash to goodwill, goodwill to old partner, sacrifice, and then old partner to cash. It is drawings to cash. Don't worry. Don't think that there is something different over here. It is drawings to cash only. We just combine that drawings to cash and capital to drawing. Drawing account बनाते नहीं है. Sum में आप capital account बनाते हो. सीधा capital में to cash और cash में by capital. इसकी है वो drawings. तो एंट्री होगी कैपिटल टू कैश इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग टू कैश, कैपिटल टू. यस व्हाट? Sir, but all 3 of these entries cancel each other out. हाँ, बट पैसा ट्रांसफर हो गया ना फ्रॉम द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर. So we'll have to make all 3 entries separately. All 3 entries separate. All of you got the 3 entries. लॉजिक समझा, शेयर ऑफ गुडविल समझा, कौन किसको देता है, कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, क्यों होता है, बात समझ आई? एनी डाउट्स? अब प्रॉब्लम पे आ जाओ. टेक आउट सम नंबर 15. 15 प्रॉब्लम. सर हम एक और दो कंबाइन नहीं कर सकते? कंबाइन नहीं करना है, इंडिविजुअली ही करना है. सबको कंबाइन करोगे तो नील हो जाएगा. यहाँ पे तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा. डोंट कंबाइन, सेपरेट एंट्री. ओके, ये गुडविल ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का आधा साइड का जर्नल करो, बहुत बड़ा मत बनाना. हाफ साइड का जर्नल ड्रॉ करो. सम नंबर 15. ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 15. These are just practice journal. Actual sum में ये part बन के आएगा. We are taking one part. Yesterday we took ratios. Now we are taking goodwill. Okay, ये सब entries अच्छे से करो, फिर पूरा सम साथ में करेंगे, एक साथ करेंगे. भी खाली नेट प्रैक्टिस चालू है, खाली बैटिंग कर रहे हो, खाली बॉलिंग कर रहे हो, फिर पूरा क्रिकेट मैच खेलेंगे. कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज रहेगा उसको ब्रेक डाउन करके करने का इजी पड़ेगा. ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट. तो फर्स्ट वन 15th सम देखो सब लोग क्या दिया हुआ है. सम नंबर 15. Sir, ये in the books of old partners or in the books of new partners? हाँ, इन द बुक्स ऑफ डॉट लिखना ही नहीं है, क्योंकि आधा सम ओल्ड का होता है, आधा न्यू का होता है. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ विल बी ऑलवेज ब्लैंक इन द बुक्स ऑफ डॉट. Always, you never write the names of the business or partner. So what if the name of the company is giving like mess? Company is given, then it is still fine if you are not changing the name. Otherwise, partners का नाम होता है, वो हम लोग लिखते ही नहीं है यहाँ. Business का नाम, it is still fine if they are not changing the name. So in general, आप sums में कभी भी देखोगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको नाम. एडमिशन बोलो या रिटायरमेंट बोलो या डेथ बोलो, किसी में भी नहीं लिखना है. 15th sum. ओके, देखो क्या दिया है. रीड द क्वेश्चन. Raj and Dev are partners in a firm sharing profits and losses as 4:3. Can you tell me what is 4:3? Old ratio. 4:3 is old ratio. And आगे दिया है, they decided to admit Madhu on a condition that she shall have 1/7 share. तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है आपका? 1/7. She will bring 20,000 as her capital and 7,000 as her share of goodwill. You are requested to pass entries for goodwill and capital. देख के बताओ which case of goodwill is this? Case 1 or case 2? Case 1. Case Case 1. 2. Why not case 2? They are not taking it. They are as not points. taking it away. Withdrawn दिया ही नहीं है, तो मतलब it is case 1. Simple. Case 1 और 2 में इतना सा ही फर्क है. वो घर पे, यहाँ पे बिजनेस में रखता है, वो घर पे लेके जाता है. Withdrawn. The ultimate keyword is withdrawn. Drawings किया तो case 2, नहीं किया तो case 1. Okay? अभी आ जाओ case 1 पे. पहले मुझे बताओ कैपिटल की एंट्री. What should be the entry for capital? New partner is getting capital. Cash to capital. Cash to new partner कौन है? मधु.
कैश टू मधु's कैपिटल बराबर है. हाउ मच कैपिटल इज शी गेटिंग? 20,000. ये लिख दो. सॉरी, कैश टू मधु's कैपिटल 20,000 being capital introduced by Madhu. Sir, we need to write the narrations. Yes. now. Second entry. Second and third entry will be for goodwill. Which case it is case 1? How many entries in case 1? 2 entries. What are the 2 entries? Can you tell me? First entry. Cash account to goodwill account. Cash to goodwill. Cash to goodwill. पहला cash to goodwill. This would be how much? कितना ला रहा है देखो, उधर दिया हुआ है आपको शेयर ऑफ गुडविल. जो हमने सब मेहनत करके ढूंढा ना, प्रॉफिट ऑफिट डिवाइड करके, वो वहां पे दिया हुआ है आपको. ऐसा सम में भी दिया रहेगा. व्हाट इज द शेयर ऑफ गुडविल? 7,000. 7,000. करेक्ट. 7,000 is the share of goodwill. 7,000 is the share of goodwill being goodwill brought in cash. ये टोटल गुडविल है कि शेयर है? Share. शेयर है. टोटल तो टोटल थोड़ी लाने वाला है, खाली शेयर. अब उसको खुद को जितना मिलने वाला है ना मधु को ये साल, वो उठा के दे रही है बिजनेस को. अब ये कौन डिवाइड करेगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको? Raj and Dev's capital. Raj. Goodwill account debit to Raj capital to Dev's capital. In which ratio? $1 million question. पैसा तो आ गया भैया, कौन से रेशियो में डिवाइड? Sir, old ratio. गलत जवाब. We'll have to find the sacrifice. Sacrifice ratio. It is sacrifice ratio. Sacrifice ratio. अभी तो बोला sacrifice ratio में करना है. But they have not given the new ratio. हाँ, तो they have not given the ratio. What you will assume? What is your sacrifice ratio? Old ratio. Same as old ratio. But no, your answer is not old ratio. Sometimes it might be different. You have to take it in sacrifice ratio. बोलने का मतलब. Got it? In this sum, there is no info given about sacrifice. There is no info about new ratio. So assume old ratio is equal to sacrifice ratio 4:3. So 4,000 will go to Raj and 3,000 will go to Dev, being goodwill distributed to old partners in old ratio. समझा कि In नहीं? sacrifice ratio. no? Oh, sorry, sacrifice. Sacrifice. Always goodwill will be divided in share of goodwill. जो भी ला रहा है वो हमेशा sacrifice ratio. Share of goodwill will always go in sacrifice. Always. समझा? That was Sir, we have to show the working note and all that. working note. This itself, this entire thing is a working note only. अभी ये proper full-fledged sum नहीं है. Full-fledged sum में will show that working note for ratio calculation. अभी इतना सा दिखा दो, ये नीचे जो किया है ना, just show that much. OR, SR and Madhu's share. Now you take sum number 18. All of you take sum number 18. All of you take sum number 18. Sir, 15 बताओ. एक सेकेंड ना, ये रहा 15. एंट्री क्लियर है दोनों का? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, दो ही एंट्री है. कैश टू गुडविल, गुडविल गुडविल कट हो जाता है वो याद रखना, तो बचता है कैश टू ओल्ड पार्टनर. पैसा आया ओल्ड पार्टनर का हो गया, लाया न्यू लेकिन दिखाओगे कि ओल्ड का हो गया. द कैपिटल बिलोंग्स टू ओल्ड. ओके, द कैपिटल बिलोंग्स टू ओल्ड. नाउ 18 सम पढ़ो. A and B were partners and profits and losses are 4:3. What is 4:3? Old ratio. Old ratio. New ratio on admission of C was 4:2:1. What is 4:2:1? New ratio. अब old ratio भी दिया, new ratio भी दिया. Sacrifice ratio ढूंढना है. कैसा ढूंढोगे? Formula. Can you assume OR equal to SR over here? No. Why? Why? It can New be ratio. allowed. Can be different. So how will you find out sacrifice ratio? याद है कल किया था हमने type 2. Sun formula. Type 2 में sun formula. Sacrifice ratio ढूंढना है तो sun formula. What is the sacrifice ratio का formula? SR is OR minus
sacrifice is OR minus NR. चलो ढूंढो sacrifice ratio for Mr. A and Mr. B. sacrifice ratio ढूंढना है. OR है 4/7, NR है 4/7. This is 0. 3/7 minus 2/7. This is 1/7. Can you tell me what is your sacrifice ratio? What is your sacrifice ratio? It is 0:1. Am I right? 0:1 is your sacrifice ratio. You got that? Hello. मिला कि नहीं? अभी क्वेश्चन पढ़ो. He brings 20,000 as capital and 6,000 as his share of goodwill, which is withdrawn by the old partners. Pass the entries for capital and goodwill. Which case of goodwill? Second. Second case. First case में और second case में फर्क समझ में आया? Withdrawn दिया है तो second case, कुछ नहीं दिया है तो first case. ठीक है? अभी एंट्री करते हैं. एंट्री नंबर 1, कैपिटल की एंट्री. कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कैपिटल? Cash to capital. Cash to seize capital. Cash to seize capital 20,000. ये तो कैपिटल ला रहा है, ये तो लाना ही है उसको अगर बिजनेस में हिस्सा चाहिए तो. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय. सेकेंड एंट्री अभी सब गुडविल का. हाउ मेनी एंट्रीज फॉर गुडविल इन केस 2? 1 2 3 एंट्रीज. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? What is the first entry? Cash to goodwill. Cash to goodwill. Okay, cash to goodwill. कितना goodwill ला रहा है देखो, दिया हुआ है वहां पे share of goodwill. How much share of goodwill is he getting? How much share of goodwill is he getting? 6,000. Share दिया हुआ है 6,000. Being goodwill brought in cash. What can you explain why goodwill is credited? I told you, 1 minute. Let me write this entry, then I'll explain. What is the next entry? Goodwill. What? Goodwill to Two partners. Which partners? Old B's partners. capital. A cap and B cap. Which ratio? 0:1. 0:1. So म्हणजे sacrifice ratio is 0:1. Sacrifice ratio is 0:1. तो A को कितना जाएगा? 0. और पूरा का पूरा 6,000 will go to B. A का नाम नहीं लिखा तो चलेगा? चलेगा, no problem, because उसको वैसे भी नील जा रहा है. Being goodwill distributed to old partners in sacrifice ratio. Yes, Kirtana, what is the logic behind this entry? You have to see this entry first and this entry second. तो पहला एंट्री में क्या हुआ? गुडविल टू ए टू बी. एक एसेट है जो बुक्स में आया. कौन लाया? बी लेके आया. तो गुडविल टू बी का, जैसे फर्नीचर टू बी कैपिटल. एंड देन द बिजनेस सोल्ड दैट एसेट. कैश टू फर्नीचर के जगह कैश टू गुडविल. पैसा आया, गुडविल गया. पैसा आया, फर्नीचर गया. कैश टू गुडविल 7,000. And so I have one more doubt. Last sum में for the goodwill to A, B, whatever it was. So how do we not find actual SR? What is the need? न्यूमरेटर ही चाहिए ना एसआर के लिए. एक्चुअल एसआर क्यों चाहिए जब एनआर ढूंढना हो? अभी थोड़ी एनआर ढूंढना है. एनआर का कोई काम ही नहीं था वहां पे. नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनआर. If in the problem you need NR, then you do all those steps. OR, SR, actual SR, and then NR. Calculate NR, new ratio. But here you did not require new ratio. You needed only sacrifice ratio. So then there is no need to unnecessarily do that lamba working note. Okay. Working note दिखाओ ना सर. एक मिनट, एक और एंट्री है इसका, बताता हूँ. इसका थर्ड एंट्री बाकी है बॉस, गुडविल का. विड्रॉन का एंट्री क्या है? विड्रॉन का B's capital to cash. B's capital to cash. Drawings to cash के जगह समझा आपको? Drawings to cash, capital to drawing. Drawing cut. तो सीधा B's capital. Why am I not writing A's capital? Because ratio is 0:1, so A is not getting anything. Anything. Party कौन मनाएगा? खाली B मनाएगा. B's capital to cash. Being
कैश विड्रॉन टुवर्ड्स गुडविल, being cash withdrawn towards goodwill, being cash withdrawn towards goodwill. ये रहा इसका वर्किंग नोट, ये रहा इसका वर्किंग नोट. ठीक है. There are in all 5 cases, 5 different cases of goodwill. उसमें से यूजफुल खाली यही है 1 और 2. 3, 4 and 5 are actually discarded. वो तो practically यूज भी नहीं होता. 1 और 2 CA फाउंडेशन में भी यूज the same case which is their use practically. थर्ड ऑफ वो तो डिस्कार्ड हो चुके हैं, स्टिल सिलेबस में है तो हम करेंगे, वो मैं आपको सम्स के साथ बताऊंगा. अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज रीवैल्यूएशन. लास्ट स्टेप ऑफ एडमिशन दैट इज रीवैल्यूएशन. कल से हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन. ये हो गया गुडविल का केस. क्लियर है? लॉजिक समझा गुडविल का? शेयर ऑफ गुडविल इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. फ्यूचर का प्रॉफिट अभी एडवांस में देना पड़ेगा उसको. ओके, तो पुराने को बिलोंग करता है, नए को नहीं करता है. आ जाओ लास्ट स्टेप दैट इज रीवैल्यूएशन. व्हाट इज द डैम थिंग ऑफ रीवैल्यूएशन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर एडमिट होने वाला होता है, ओके, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होने वाला होता है तब पुराने पार्टनर अपने एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं और उनका जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ होता है टिल द डेट ऑफ एडमिशन उसको शेयर कर लेते हैं पुराने रेशियो. मतलब क्या? समझो मैं और मोक्ष वी आर पार्टनर्स. ओके, हमको एडमिट करना है वरुण को. मैं और मोक्ष पार्टनर है, हमको वरुण को एडमिट बिजनेस. अब मैंने और मोक्ष ने एक जमीन खरीद के रखी थी 1 लाख रुपीज की, आज से 5-6 साल पहले. बुक्स में 1 लाख ही दिख रही है और अभी वरुण एंट्री मारने वाला है. उससे पहले हमने जांच किया, मार्केट में गए, घूमे, देखा ये जमीन का भाव क्या होगा, तो हमें पता चला कि 3 लाख रुपया होगा. कितना होगा? 3 लाख. तो अभी तो बेचा नहीं है, समझो कल उठ के बेचेंगे तो 3 लाख रुपए आएंगे. वो 3 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट है. वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? खाली ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है कि न्यू पार्टनर का भी उसमें हिस्सा होता है? ओनली ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने वो एसेट खरीदा हुआ को बिलोंग करता है ना. हाँ, बिजनेस, बट हु डेवलप्ड दैट बिजनेस over the years? Just like previous reserves and losses belong to the old partners, वैसे ही just before admission what we will do, we will revalue the asset. Okay, revalue मतलब अभी ये लैंड है तो इसको क्या कर देंगे? अप्रिशिएट कर देंगे जस्ट बिफोर हिज एडमिशन, न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले. क्यों पहले कर देंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है, बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर. एंट्री क्या होती है मुझे बताओ? व्हाट इज एंट्री फॉर अप्रिशिएटिंग लैंड? लैंड एंड बिल्डिंग टू अप्रिशिएट. लैंड एंड बिल्डिंग टू अप्रिसिएशन 2 लाख रुपीज. अब ये अप्रिसिएशन ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर होता है? पीएनएल. और उसकी एंट्री क्या होती है? अप्रिसिएशन टू पीएनएल. पीएनएल में बाय अप्रिसिएशन आता है आपका, बराबर है. एंड देन पीएनएल में ये प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा विद दिस प्रॉफिट? बढ़ेगा. तो उसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू कैपिटल, बराबर है. अब ये कब होगा? जब आप पीएनएल बनाओगे. और पीएनएल कब बनाओगे? ईयर एंड पे बनाओगे. लेकिन आपको ईयर एंड तक रुकना नहीं है, आपको ये सब कब करना है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे करना है. याद है? एडमिशन का पूरा प्रोसेस पहले दिन पे करना है. अब पहले दिन पे तो पीएनएल बनता नहीं है, तो जब भी पीएनएल ना बना सको साल के बीच में, और आपको गेन्स और लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं, आपको गेन्स और लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन पीएनएल बनाने का चांस नहीं है क्योंकि वो ईयर एंड पे बनता है. फिर भी आपके गेन्स और लॉसेस, आपको चेंजेस दिखाने हैं, गेन्स और लॉसेस दिखाने हैं, तो उसके लिए ओपन अ न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर उसका दूसरा नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. व्हाट इज पीएनएल एडजस्टमेंट? कजिन ब्रदर ऑफ पीएनएल. पीएनएल कम्स ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर. बीच में कभी भी प्रॉफिट्स में चेंजेस करने हैं ना आपको, साल के बीच में कोई भी दिन पे, तब ये खड़ा हो जाएगा हल्क बन के, मैं हूं, मेरे में चेंजेस दिखाओ. कौन है ये अकाउंट? पीएनएल एडजस्टमेंट. इज द कजिन ब्रदर ऑफ पीएनएल.
नाम ही पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है, पीएनएल नहीं है, पीएनएल ईयर एंड पे बनता है, ईयर के बीच में चेंजेस करने हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट में दिखाओ। तो यही एंट्रीज हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखना अभी ध्यान से। लैंड टू अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन कैन यू सी अप्रिसिएशन इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, 2 लाख 2 लाख मिला आपको। तो नेट एंट्री क्या बनी आपकी, लैंड टू पीएनएल बनी एंड पीएनएल टू कैपिटल। बस यही एंट्री हम लोग दिखाएंगे, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट इधर नाम ऐड कर दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आपकी एंट्री बनेगी लैंड टू पीएनएल एडजस्टमेंट एंड पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। मतलब बेसिकली जो भी प्रॉफिट हुआ है वो किसको चला जाएगा, विच कैपिटल, ये कौन से कैपिटल को चला जाएगा, ऑल 3 पार्टनर्स और ओनली ओल्ड पार्टनर, Only old partners. ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो तो होगा नहीं, ओल्ड और सैक्रिफाइस, विच रेशियो, ओल्ड। व्हाई नॉट सैक्रिफाइस, यू गॉट दिस ओवर हियर। ये पुराना प्रॉफिट का बात चालू है, इसमें कोई सैक्रिफाइस का न्यू का कोई लेना देना है ही नहीं। न्यू के आने से पहले ही सब काम तमाम कर रहे हैं हम लोग। एसेट बढ़ गया था, उसका गेन रिकॉर्ड किया, एसेट का भाव बढ़ा दिया, अभी 1 लाख का जमीन हो गया 3 लाख, और जो भी प्रॉफिट हुआ पीएनएल क्रेडिट में नहीं डालेंगे, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। इंस्टेड ऑफ पीएनएल वी आर ओपनिंग पीएनएल एडजस्टमेंट, और फिर पीएनएल एडजस्टमेंट से कैपिटल का क्रेडिट में। एब्सोल्युटली पीएनएल का क्रेडिट में से पीएनएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट, और पीएनएल एडजस्टमेंट से कैपिटल में। जैसे पीएनएल बनता है ना फाइनल अकाउंट में, वैसे पीएनएल के जगह विल बी मेकिंग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। डिड यू गेट दिस? So whichever entries are passed in P&L adjustment, will they be passed in P&L? एकदम हाँ, gains, all the incomes on which side of P&L? Side. इधर P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट ये दिख रहा है आपको, लैंड टू P&L एडजस्टमेंट। तो P&L एडजस्टमेंट में आएगा ना बाय लैंड, इट्स अ गेन। No, I'm asking that whatever entries you pass in the revaluation account. बाकी तो कुछ आएगा ही नहीं ना एक्सपेंस इनकम, क्योंकि अभी अभी फाइनल अकाउंट बनकर रेडी हुआ है। खाली कौन सा दिखेगा गेन्स और लॉसेस, एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का। जैसे एसेट बढ़ा, मेरे को बोलो एसेट बढ़ा तो गेन हुआ कि लॉस, गेन। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू अप्रिसिएशन के जगह पीएनएल एडजस्ट, अप्रिसिएशन के जगह पीएनएल एडजस्ट डायरेक्टली, ठीक है, अप्रिसिएशन कट। वैसे ही एसेट कम हुआ तो क्या हुआ, एसेट कम हुआ तो P&L adjustment or P&L adjustment asset. I'll give you an example. Take this. Suppose there is an asset. I'll come to your doubt. There is an asset called furniture. आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था, उसको आप डेप्रिशिएट करते जा रहे हो 10 10 10 10 10, अभी 60,000 हो गया। डेप्रिसिएशन नॉर्मली जो चल रहा है वो चल ही रहा है, हर साल आपने दिखाया हुआ है ओल्ड पार्टनर, उसकी वैल्यू बुक्स में दिख रही है 60,000, ठीक है। अब नया पार्टनर एडमिट होने वाला है, उससे पहले पुराने पार्टनर्स गए मार्केट में और उन्होंने चेक किया 60,000 का फर्नीचर बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, मार्केट वाले ने बोला 30,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000। तो जो डेप्रिसिएशन कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, ये क्या है, ये आपको मार्केट प्राइस पे लाना पड़ेगा। नॉर्मली हम नहीं लाते मार्केट प्राइस पे एसेट, हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट और डेप्रिशिएट। बट बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर हम लोग मार्केट में जाएंगे, पूछेंगे कितना आएगा 30, तो बेचने जाएंगे तो 30, तो क्या होने वाला है, 60 का 30 में जाएगा तो क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब समझो हमने कुछ नहीं किया और नए पार्टनर को घुसा दिया और कल उठ के फर्नीचर बेचा, तो लॉस कितने लोगों में डिवाइड होगा, 3 लोग। तो नया पार्टनर तो चढ़ जाएगा ना, नया पार्टनर तो चढ़ जाएगा। वो क्या बोलेगा, यार ये तो पहले से ही 30 था, तुमने रिवैल्यू नहीं किया, मैं क्यों लॉस भुगतूं इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी एसेट और सभी लायबिलिटी को मार्केट रेट पे लेके आते हैं। क्यों मार्केट रेट पे, हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो नया पार्टनर अगर अफ्रेश न्यू बिजनेस चालू करता तो मार्केट में उसको 30 में मिलता ये फर्नीचर, मार्केट में जमीन उसको 3 लाख में मिलती। तो अफ्रेश न्यू पार्टनर जो चालू करता और जो एसेट लायबिलिटी होते, वो एसेट लायबिलिटी के वैल्यू पे हम लोग अपने बिजनेस को लेके आते हैं। और पुराना जो गेन्स और लॉसेस है वो कौन शेयर कर लेगा, Old partners in old ratio. Is this clear? तो अभी फर्नीचर का बोलो, व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्विक।
Depre to furniture. Where do you transfer this depreciation? Come on. P&L. 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 To depreciation is the entry for depre. You know this, right? बराबर है 30,000 30,000. Where will this loss go? Loss कहाँ जाता है ये P&L का? कैपिटल. तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल. P&L डेबिट साइड बढ़ा है ना, तो बाय नेट लॉस और कैपिटल में टू नेट लॉस, तो कैपिटल डेबिट होगा. कैपिटल टू P&L होता है ये 30,000. यस और नो? यही चीज हम लोग एडमिशन के वक्त करेंगे. क्या करेंगे? डेप्री कट कर देंगे. डेप्री कट. व्हाट इज माय नेट एंट्री? P&L टू फर्नीचर एंड कैपिटल टू P&L. खाली P&L के जगह क्या यूज करूंगा? P&L यूज नहीं करूंगा. P&L ईयर एंड पे बनता है. P&L के जगह क्या यूज करूंगा? P&L एडजस्टमेंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इट इज एंट्री क्या बनेगी? P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर एंड कैपिटल टू P&L एडजस्टमेंट. Who will share this loss? Old partner. In which ratio? Old ratio. पुराने एसेट का जो प्रॉफिट है वो भी ओल्ड को जाएगा. ओल्ड रेशियो. लॉस है वो भी ओल्ड को जाएगा. जैसे एसेट होता है वैसे लायबिलिटी भी हो सकता है. जैसे एसेट होता है वैसे लायबिलिटी भी हो सकता है. कैसा हुआ लायबिलिटी? समझो हमारा कोई क्रेडिटर है जिसको हमें 1 लाख रुपया देना है. ओके, वी हैव अ क्रेडिटर जिसको हमें 1 लाख रुपया चुकाना है. आर यू ऑल विथ मी? बिफोर एडमिशन मैंने क्रेडिटर से पूछा कि भाई बिजनेस में थोड़ा मंदी भी चालू है और धंधा भी ऐसा ऐसा हुआ है, गिव मी सम डिस्काउंट. आई विल पे यू 90,000. आई विल पे यू 90,000. ओके, मैं 1 महीने में दे दूंगा. आई विल पे यू 90,000. क्रेडिटर बोला ठीक है, चलो 90,000 डिस्काउंट. ओके, अरे 10,000 डिस्काउंट. आई विल पे यू 90. तो क्रेडिटर बोला 10,000 का डिस्काउंट चलेगा. अब ये गेन जो है 10,000 की, क्रेडिटर को आपको कितना देना है? 1 लाख की जगह 90 देना है. ये गेन किसको बिलोंग करता है? Only to the old partner. ओल्ड पार्टनर. नया पार्टनर के आने के बाद अगर आप उसको डिस्काउंट में पे करोगे, 10,000 का डिस्काउंट होगा, गेन होगा. गेन तीनों में बटेगा. न्यू पार्टनर को बैठे बैठे फायदा हो रहा है जो उसका कोई हक का है ही नहीं. तो आप क्या करोगे? अभी से क्रेडिटर का एंट्री कर दोगे, कम कर दोगे. तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट कितना होगा? 10,000. डिस्काउंट कहां जाता है? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. यू नो द एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड किधर जाता है आपका? P&L में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड में टू P&L ट्रांसफर. और P&L टू कैपिटल, दैट्स योर गेन. यस और नो? यहां पर क्या करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन ही नहीं करोगे, कट कर दो. और P&L के जगह क्या लिख दोगे? P&L एडजस्टमेंट. इज दिस क्लियर? अब क्या हुआ? ये गेन हुआ कि लॉस हुआ? बताओ मेरे को. क्यों गेन हुआ? लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा. तो यही लॉजिक अप्लाई करना है. एसेट बढ़ा तो क्या होता है? एसेट बढ़ा तो गेन. एसेट कम हुआ तो लॉस. लायबिलिटी घटी तो क्या होता है? गेन. और लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस. लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस. ओके, सो लायबिलिटी बढ़ी कैसे? लायबिलिटी भी बढ़ सकती है. सपोज देयर आर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 5,000. आप भूल गए थे तो एडमिशन से पहले रिकॉर्ड करिए. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिटर्स? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स. परचेज टू क्रेडिटर. अनरिकॉर्डेड परचेज था आपका. परचेज टू क्रेडिटर. अब परचेज क्या है? एक्सपेंस है. ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. ट्रेडिंग से P&L से कैपिटल, तो अल्टीमेटली लॉस है. तो खर्चा बढ़ा ना, और लायबिलिटी भी बढ़ा. लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस. लायबिलिटी घटा तो गेन. एसेट बढ़ा तो गेन. एसेट घटा तो लॉस. एंड all those gains and losses will you show under P&L account or P&L adjustment account? P&L adjustment. Why not P&L? Because P&L is prepared at the End of the year. बीच में करना है चेंजेस तो कौन से अकाउंट में करना है? P&L. सर फिर आपने बोला P&L कभी भी बना सकते हैं. P&L एडजस्टमेंट कभी भी बना सकते. अच्छा, वो मैंने P&L ट्रेडिंग कभी भी बना सकते, वो लॉजिक में बोल दूं. वो तो जब फाइनल अकाउंट बनाना हो ना, तब फाइनल अकाउंट्स कभी भी बना सकते. पूरा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, दैट्स व्हाट आई सेड. क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली,
बट जनरली यू मेक फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द, बनाने के लिए बना सकते हो कभी भी, लेकिन अगर बिजनेस एक ही बार बना रहा है साल में फाइनल अकाउंट, तो बीच में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो कौन से अकाउंट में करेगा, तो P&L एडजस्ट। So all these entries that we are doing, will it be shown in the trial balance and फिर वो फाइनल अकाउंट्स में भी दिखेगा कि इसमें ही खत्म हो जाएगा? इधर ही खत्म हो जाएगा, रिवाइज बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा, मैं सम करूंगा ना आपको पता चलेगा, एक दिन पहले की बैलेंस शीट और एक दिन बाद की बैलेंस शीट ताबड़तोड़ रेडी दूसरे ही दिन। ओके, एक दिन का फाइनल अकाउंट बना रहे चिंटू सा, समझ लो, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L के जगह बना रहे P&L एडजस्टमेंट, एंड वी विल शो अ बैलेंस शीट आल्सो। ओके, that's why I told you entire chapter is based on final account. This is one day ka final account, you can think it that. Okay, once again just tell me quickly, asset बढ़ा तो gain, asset कम हुआ तो liability बढ़ी तो loss, liability घटी तो asset बढ़ा तो gain, asset कम हुआ तो loss, liability बढ़ी तो liability घटी तो gains will be recorded on which side of P&L adjustment account, credit or debit? Gains becomes credit, expenses loss debit। तो अगर asset suppose बढ़ रहा है तो land to P&L adjustment credit हो, asset घट रहा है तो P&L adjustment to land, liability बढ़ रही है तो क्या है, loss है, तो P&L adjustment to liability, और लायबिलिटी घट रही है तो लायबिलिटी टू P&L एडजस्टमेंट। इज दिस क्लियर? P&L के जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बैठा दिमाग में, डेबिट में लॉस, क्रेडिट में गेन, जो भी गेन या लॉस, जैसे P&L को बंद करते हो ना फाइनल अकाउंट में, एंड वेयर डू यू ट्रांसफर योर प्रॉफिट और लॉस? कैपिटल ना, कैपिटल। वैसे P&L एडजस्टमेंट को भी बंद करके जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा किसको जाएगा? Capital. Which partners? Old partner, new partner, किस partner? Old partner. Old. Which ratio? And this are Old ratio. If credit is greater than debit, you make credit is greater than debit, you make profit. Debit is greater than credit, you make loss. Is this clear? Same concept. खाली P&L के जगह P&L adjustment. There is one more difference between P&L and P&L adjustment that I'll tell you along with the problem. That is revenue and capital. P&L only records revenue nature items. P&L adjustment also records capital nature items. Capital profits and losses भी record करता है. मैं sums के साथ आपको बता दूंगा when we come across the problem. Okay. So all in all, I'll come to the doubt. Don't worry. All in all, you want to understand about revaluation or P&L adjustment. What is that? जब भी नया पार्टनर एडमिट होने वाला है उससे पहले उसको दरवाजे पे खड़ा करेंगे, गृह प्रवेश होने से पहले खड़ा करेंगे, और हमारे पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। एसेट का भाव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे उसको, और जो भी प्रॉफिट लॉस है किसको जाएगा वो प्रॉफिट लॉस? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इज दिस क्लियर? और वो प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? गेन्स P&L एडजस्ट, कजिन ब्रदर ऑफ P&L। साल के बीच में जब भी चेंजेस करने हैं प्रॉफिट में तो ये अकाउंट रेडी हो जाएगा, आई एम देयर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर उसका दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? यस, टेल मी द डाउट्स, प्रियल। Sir, we are anyways making the capital account and the balance sheet second time on the first date, and this revaluation account only records the adjustment part of these assets and liabilities, nothing else, right? So we can directly minus from the assets or the liabilities and then add to capital. Why to do this adjustment ka thing? Yes, you can do that, but when you do the sums now, you will have adjustments on 6, 7 assets, 8 assets, और liabilities सब मिला के 5, 6, 7 items you will have. So every time बैलेंस शीट में तो चलो ठीक है इंडिविजुअल आइटम पे कर सकते हो, बट कैपिटल पे every time, every profit, every loss, again divide it in old ratio, again add, again less, again add, again less. It will become very tedious process, na? It can be done, but it will look very shabby and tedious. Continuously every time profit or profit. So that's why we showed at one single place, and then पूरा का पूरा profit loss we transfer. Sorry? Yeah, that was your doubt. कितने टाइम से? What man? Varun? Sir, why can't we cancel P&L adjustment account also? That's what she said now. Yeah, directly in the capital. What man? You are listening also then doing like this. P&L adjustment cancel करोगे तो क्या मिलेगा? Asset to capital.
बढ़ा तो, या Yes. कैपिटल टू एसेट, बट हर बार करना पड़ेगा। आपके पास 7-8 एसेट लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट है, हर बार हर प्रॉफिट हर लॉस को डिवाइड करो, ऐड करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, ऐड करो, डिवाइड करो, तो बल्कि हो जाता है ना टीडीएस। इसके लिए वो कॉमन अकाउंट है, सिंपलीफाई कर। And sir, will there be a ledger account for P&L adjustment? यस, लेजर अकाउंट बनाएंगे हम लोग सब में। पीएनएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, और कैश और गुडविल अकाउंट भी बनेगा। These 5 things you make in every. Okay? I'll do the sums tomorrow. I'll start. आज आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पेज नंबर 44 लेना है सबको, थ्योरी पार्ट का। Yes, Priyal, one more doubt. Please take page number 44, admission of a partner theory. All of you take page number 44. उसका आपको 44 तो आपने पढ़ लिया है। 45, पेज नंबर 45, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट का ए का 1 और 2, सेकंड पॉइंट ए 1 एंड 2, ये पूरा अच्छे से देखना है। ओके, थर्ड पॉइंट मत देखना, थर्ड पॉइंट से आगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर। 1.1.2, ओके, केस 1 केस 2 है वो आपका। और उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46 पे पॉइंट 4, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और पूरा 47, पेज नंबर 46 रीवैल्यूएशन, और पूरा पेज 47 पूरा रीड करना। ओके, रीवैल्यूएशन का पूरा पार्ट रीड कर लेना है 47 का, ठीक है। तो 45 का केस 1 केस 2 रीड करना है, गुडविल का जो आपने आज लर्न किया, और 46 और 47 रीवैल्यूएशन का पूरा पार्ट। ओके, कुछ डाउट्स क्वेरीज रहेगा तो लेट मी नो। रिटर्न होमवर्क नहीं है, फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिस करना लिख के, 5-6 सम्स। टेस्ट है फ्राइडे 2 to 3:30। ओके, कुछ डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू। बाय सर।